Aditya, Yes, my sir. screen is visible to you? Aditya, Yes, screen is sir. visible? Yes. Oh, okay. So now students, very good morning to all of you. Today we are here for 8 coaching class of refrigeration and air conditioning. Myself, Dr. Harish Bhatkul. I'm already you aware to final year student, but some third year students also here attending this class. So to them I give introduction. Myself Dr. Kulkar, and I am teaching this subject to final year. My background is thermal side. So syllabus or gate in mechanical engineering is there in section. The first section is mathematics, second section applied Sir, mechanics your voice design, is third clear. section fluid mechanics Sir, and your audio. thermal industry. Concentrate on section Hello. that is refrigeration Sir, is there sir, your in audio the is not clear. thermal. Not is it Sir, voice is not clear. hello? Hello, sir. Sir, your voice is not audible. Sir, it's not clear. Hello, Aditya? Hello. Okay. Now is it okay? Ah, yes, sir. आ रही It's क्या okay. आवाज आ रही है अभी? Yes, Right. sir. Okay, okay. So students, here regarding the syllabus of mechanical engineering for GATE, this syllabus is divided into 4 sections. तो पहले सेक्शन में आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकंड पार्ट में आता सेकंड सेक्शन में मैकेनिक्स एंड डिजाइन, और थर्ड सेक्शन में आता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। और अपना रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का सिलेबस इसी थर्ड सेक्शन में होता है अंडर थर्मल साइंस एप्लीकेशन। तो हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एंड अंडर दिस टॉपिक द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन द गेट that will be based on refrigeration basics, then reverse Carnot cycle, then refrigerator and heat pump, VCR cycle, then vapor absorption refrigeration cycle, refrigerant, psychometric property, साइकोमेट्रिक चार्ट एंड लास्ट बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इफ टाइम परमिट। तो पहले हम इसके ऊपर सब पूरा बेसिक देख लेते। So first we will see what is meant by refrigeration. So introduction to refrigeration. Students, the meaning of refrigeration, literal meaning of refrigeration is the production of cold confinement. Confinement का मतलब होता है space. So production of the cold atmosphere relative to the surrounding. अब ये जो surrounding word है ना बहुत important है यहाँ पे, right? क्योंकि क्या होता है कि जनरली कभी कभी हमारा कंफ्यूजन हो सकता है दो वर्ड में, लाइक रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कूलिंग का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन टेम्परेचर, reducing the temperature is a cooling, right? But reducing the temperature is not a refrigeration. Refrigeration किसको बोलते हैं? If you maintain the temperature of a particular space with respect to surrounding, like below the surrounding, then it will be a refrigeration process, otherwise it will be a cooling process. I am again repeating, if you are reducing the temperature then it will be a cooling process, but if you are reducing and maintaining the temperature below the atmospheric temperature then it will be a refrigeration process. Now imagine karo, there is one house and you have to maintain this house at a temperature of 30 degree. Let's imagine outside temperature is 40 degree centigrade. अब यहाँ पर क्या होगा? Because of this temperature difference there will be a heat transfer in right direction naturally. ये temperature difference के कारण there will be a heat transfer, and this heat transfer will flow like this. अब इसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर इनसाइड दी हाउस जो हमने
हमने 30 गेट इंक्रीज ऑफ एडिंग के फिर से इस रूम में 30 डिग्री टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है तो आई विल हाउ टू टेक आउट, आई विल हाउ टू रिजेक्ट वॉट एवर हीट एब्सॉर्ब इन दी रूम। तो रूम में सारी की सारी हीट हम निकालनी पड़ेंगी जितनी बाहर से आई, राइट। अब आपको पता है हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, राइट। हमेशा हीट कैसे फ्लो करती है नेचुरल डायरेक्शन में, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो इनसाइड द रूम टेम्परेचर हीट आई हुई है वो उसका टेम्परेचर वहां पे कम है, वहां से हमें हीट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अब एज पर दी न्यूटन सेकंड, एज पर दी स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो क्या बोलता है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, but in certain case it is possible to carry the heat from low temperature to high temperature। तो केस में करेंगी, वो मैकेनिकल डिवाइस को बोला जाता है रेफ्रिजरेटर, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। In this way, we can maintain the temperature inside the room less than the temperature outside. ये लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, the space to be cooled experiences relatively higher temperature and the environment where it is rejected। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां से आपको हीट निकालनी है, जिस पोजीशन से, जिस स्पेस से आपको हीट निकालनी है, वहां पे जो चेंज इन टेम्परेचर होगा इट इज मोर कंपेयर टू जहां पे हीट आपने रिजेक्ट की है, राइट। एग्जांपल लेते अपन इसके ऊपर, इमेजिन करो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आपको पता है रेफ्रिजरेटर के पीछे जो कॉइल होती है ब्लैक कलर की, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। और कंडेंसर के अंदर से जब हॉट रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है तो व्हाट हैपन, atmospheric air come in contact with that condenser tube and the heat inside the refrigerant vapor is rejected to the air। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है टू द एयर। अब जिस रूम में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, आपको कभी ऐसा फील होता है कि जैसे ही उस कंडेंसर कॉइल से हीट रिजेक्ट हुई, वो हीट रिजेक्ट कहां पर होंगी, रूम में रिजेक्ट होंगी। लेकिन कभी ऐसे आपने फील किया है कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया करके? नेवर, इट इज नॉट सो, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कंडेंसर से रूम के अंदर हीट रिजेक्ट होते रहता है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इट डजंट अफेक्ट कहां पर पड़ता है, जहां पे हीट एब्सॉर्ब हुई, थोड़ी सी भी हीट एब्सॉर्ब होगी तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज होता है, रैदर जहां पे हीट रिजेक्ट हो रही वहां पर, राइट। इसका मतलब सिस्टम से जब हम हीट निकालते हैं तो वहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, रैदर सिस्टम के बाहर जब सराउंडिंग में हम हीट रिजेक्ट करते हैं वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। Now we'll see the various definition of refrigeration. First definition can be, आपको definition बताई थी, that was a general definition. अब specific definition, refrigeration is a process of reducing and maintaining the temperature of a body below temperature of the surrounding। मतलब जरूरी नहीं कि एक बार आपने बॉडी को कूल कर दिया, बिलो एटमॉस्फेयर बॉडी को लेके आ गए और बाद में छोड़ दिया, अब फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली वहां से हीट निकालनी है सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, राइट। अनदर डेफिनेशन कैन बी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ द हीट। मतलब एक, जैसे पहले मैंने बताया था एक बार निकाल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी अ फ्लो ऑफ हीट रेगुलरली। तो क्या करना है आपको, कंटिन्यूअसली वहां के हीट का एक्सट्रैक्शन करना है, तो ही आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो बिलो एटमॉस्फेयर या बिलो सराउंडिंग। एंड थर्ड डेफिनेशन कैन बी, इट इज द आर्टिफिशियल विड्रॉल ऑफ द हीट। आर्टिफिशियल मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली नहीं हो रहा, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो रही है, जिसके लिए हम एक्सटर्नल डिवाइस जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल विड्रॉल ऑफ हीट बोला गया है। सो इट इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल विड्रॉल ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग इन अ सब्सटेंस, right, or within a space
एट अ टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर। तो आपने तीनों डेफिनेशन में एक कॉमन सेंटेंस देखा होगा, लाइन देखी होगी, दैट इज इट शुड बी बिलो और इट शुड बी मेंटेन बिलो द एटमॉस्फेरिक और सराउंडिंग टेम्परेचर, अदरवाइज इट विल बी अ कूलिंग प्रोसेस। we will see how the heat is removed in the refrigeration। हीट किस प्रकार से निकाली जाती है और किस प्रकार से हम और क्यों हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है इन रेफ्रिजरेशन। तो जनरली हीट मतलब वो हीट को क्या करने के लिए वी रिक्वायर वन वर्किंग एजेंट, वर्किंग सब्सटेंस, दैट वर्किंग सब्सटेंस विच विल कैरी द हीट और विच विल रिमूव द हीट, इट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। इट मीन्स देयर इज अ रेफ्रिजरेंट इनसाइड द साइकिल और इनसाइड द रेफ्रिजरेटर विच विल रिमूव द हीट। अब वो रिमूव कैसे करता है हीट? व्हेन रेफ्रिजरेंट कम्स इन दी कॉन्टैक्ट विद समथिंग, जहां पे जो भी रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं अपन, रेफ्रिजरेटर में जो इवोपरेटर में अगर आपने कुछ रखा है, व्हेन रेफ्रिजरेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, when refrigerant comes in contact with the substances, this refrigerant will absorb the heat from the substances, and due to absorption of the heat, initially refrigerant का फेज जो होता है वो लिक्विड में होता है। अब लिक्विड में होगा तो ही रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है, अदरवाइज रेफ्रिजरेंट हीट एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट रेफ्रिजरेंट इज इन द लिक्विड फेज while absorbing the heat from the substance in the evaporator. So when the refrigerant absorbs the heat from the substance, due to absorption of heat, it gets changes from liquid to gas. उसका phase change होता है due to absorption of heat from liquid to gas. लिक्विड से वो गैस बन जाता है। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि रेफ्रिजरेंट तभी हीट एब्सॉर्ब करेगा व्हेन इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। अब यहां पर क्या हो गया, ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ द हीट इन द इवापोरेटर, लिक्विड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वेपर। अब इसको रेफ्रिजरेंट वेपर को अगर हम फिर से रीयूज करेंगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर, हीट एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रह गया अभी कि हम दूसरा रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करें। ये रेफ्रिजरेंट तो हमारे काम का नहीं है, दूसरा रेफ्रिजरेंट हम लेके आए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज वेरी वेरी हाई। एवरी टाइम नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट लेना पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी रेफ्रिजरेंट को फिर से रीयूज करना है। सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि वॉट एवर हीट दैट रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब वाइल पासिंग थ्रू द इवापोरेटर, उस हीट को हमें निकाल के फेंक देना है उसमें के अंदर के। जब उसके अंदर की हीट निकल जाएंगी तो हम उसको रीयूज कर of the heat condenser to pass in your audio substance को ऑडियो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। सृष्टि, सृष्टि, जस्ट अ मिनट। ओके सर, जस्ट अ मिनट, मैं अपना ये हेडफोन लगा रहा हूँ। देखो ये हेडफोन काम कर रहा है क्या? तो अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कोई भी। आदित्य, अभी साउंड आ रही है अभी? आदित्य? हाँ यस सर, इट्स ओके नाउ। ओके ओके, थैंक यू आदित्य। सो नाउ टू रिमूव द, फिर से अब वॉट एवर हीट रेफ्रिजरेटर की वो हीट को अभी हमको रिजेक्ट करना है। जब उसको रिजेक्ट करेंगे तब जाके वो रेफ्रिजरेंट फिर से फ्रॉम गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होगा और उसको हम रीयूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस रेफ्रिजरेंट को हमें पास करना पड़ेगा कंडेंसर में। सो व्हेन दिस रेफ्रिजरेंट एंटर द कंडेंसर, देयर विल बी अ रिजेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू एटमॉस्फेरिक एयर। जो भी हम वहां पर कूलिंग मीडियम यूज कर रहे हैं उसको रिजेक्ट हो जाएंगी, एंड ऑटोमेटिकली दिस रेफ्रिजरेंट वेपर और गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड एंड अगेन विल बी रीयूज्ड फॉर एब्सॉर्बिंग द हीट इन द इवापोरेटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, इसको
evaporator में जाएंगी तो it will get converted, it will absorb the heat and it will get converted into gas from liquid. Again उसको हम पास करेंगे कंडेंसर में जहाँ पे वो रिजेक्ट करेगा and due to rejection of heat it will again get converted from liquid from vapor to liquid. तो ये साइकिल चलते रहता है. In this way heat is absorbed. और ये कैसे होता है हम आगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखेंगे. थोड़ा बेसिक लेते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. हीट, व्हाट इज हीट? यू माइट बी नोइंग हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. और टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो बताती है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ हीट और लेवल ऑफ हीट इन अ बॉडी, राइट. नाउ दिस हीट बी अ सेंसिबल हीट. सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं? द हीट व्हिच कैन बी फेल्ट बाय द सेंस ऑफ टच. और हीट जिसके कारण सिर्फ टेम्परेचर राइज होता है बल्कि उनके कारण किसी प्रकार का फेज चेंज नहीं होता है, ऐसे हीट को बोलेंगे सेंसिबल हीट. नेक्स्ट वन इज लैटेंट हीट. लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट ब्रिंग्स द चेंज इन द स्टेट ऑफ द चेंज इन द फेज ऑफ द सब्सटेंस. वहां पे ऐसी हीट जिसमें फेज चेंज होता है बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, में टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे फेज कांस्टेंट रहता है. इसका उल्टा लैटेंट में होता है. लैटेंट में देयर इज अ चेंज इन फेज बट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ इट इज डिनोटेड बाय एफ सफिक्स Fg. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट जो रेफ्रिजरेशन में इंपॉर्टेंट है. दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. जब ऐसा चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और इस चेंज के लिए जो भी हीट रिस्पॉन्सिबल रहती है, जो हीट इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड इस वैल्यू इज फॉर आइस इट इज 336 किलो जूल्स पर केजी. 336 किलो जूल्स पर केजी. Next, it is a latent heat of vaporization. Now, while changing the state from liquid to gas, the heat which involved is a latent heat of vaporization. So, the change of heat from liquid to gas, the heat it is called latent heat of vaporization, and its value at atmospheric pressure it is 2258 kilojoules per kg. Now, we will see a refrigerator and heat pumps. दोनों अलग है, एक है. क्या उसमें क्या फर्क है? जनरली हम दोनों कभी बहुत सी बार इस रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के अक्रॉस आते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको डिफरेंस नहीं पता होता है. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू और इन द वाइवा क्वेश्चन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप, वेदर इट इज द सेम और इट इज अ डिफरेंट. देखते हैं इसको अभी हम. रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप दे आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस. बोथ दोनों का पर्पस क्या है? दोनों का पर्पस है टू ट्रांसफर और टू कैरी द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. बोथ आर मीन टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. फिर दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या है जिसके कारण हम एक को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं और एक को हीट पंप बोलते हैं? ये डिपेंड करता है उनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर. मतलब किस पर्पस के लिए हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, वो पर्पस डिफरेंशिएट करेगा वेदर इट इज अ रेफ्रिजरेटर या वेदर इट इज अ हीट पंप. हाउ? लेट्स सी. इन रेफ्रिजरेटर व्हाट हैपन? रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? हीट इज टेकन आउट, हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लो टेम्परेचर स्पेस. देखोगे यहाँ पे आप, जस्ट ए मिनट, मैं पेन निकालता हूं. आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा मैंने? इन रेफ्रिजरेटर हीट एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम द लो टेम्परेचर स्पेस. और ये है लो टेम्परेचर. हमारा ऑब्जेक्टिव लो टेम्परेचर स्पेस से हीट अगर निकालना है तो उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर यूज टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर स्पेस, देन इट इज द रेफ्रिजरेटर, राइट. अब और इस पंप किसको बोलेंगे? इफ और ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टेक आउट द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर स्पेस बट टू ट्रांसफर द हीट द हाई टेम्परेचर स्पेस. आप देखो दोनों का थोड़ा अलग है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर में ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि लो टेम्परेचर स्पेस से हीट निकालना है, और पंप के रेफ्रिजरेटर. लेकिन हमारा जो अगर दो पे है दैट सर बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू.
हेलो सर। रेफ्रिजरेटर सिस्टम के बाहर पंप करता है हीट को, और पंप क्या ये क्या करता है, हीट पंप क्या करता है, हीट पंप एड द हीट इनटू द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम को हीट ऐड कर रहा है। इन दिस वे हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर कैन बी डिफरेंशिएटेड, और दोनों इसमें आपने देखा होगा, दोनों इसमें देयर इज अ नीड ऑफ इन द वर्क, दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क को प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर फ्रॉम टू देयर इज enough work, right? So by changing the direction we can use refrigerator as a heat pump. इस डायरेक्शन को चेंज करके हम अपने रेफ्रिजरेटर को पंप, सर अगर तो हम रेफ्रिजरेटर का, यस सर प्रॉब्लम विथ ऑडियो, सर हेलो प्रॉब्लम विथ ऑडियो, हेलो हेलो सर ऑडियो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी 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 प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो ठीक है अभी ऑडियो, हाँ अभी ठीक है सर। अभी आ रही है आवाज, यस सर। हाँ ठीक है। तो थोड़ा मैं इसमें प्रॉब्लम है, हेडफोन में हेडफोन निकाल दिया मैंने, सर आवाज आ रही है लेकिन विदाउट आपकी हेडफोन बात आवाज कर रहा हूँ लैग अभी मैं। कर रही है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लैग हो रही है, तो फिर ये शायद नेटवर्क की इशू होंगी, थोड़ी देर के बाद वो क्लियर हो जाएगी, राइट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या फर्क है। हीट पंप सॉरी रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो स्पेस से हीट निकालेगा, तो उसको बोलेंगे हम रेफ्रिजरेटर। अगर वही चीज अगर लो टेम्परेचर पे सॉरी हाई टेम्परेचर पे हीट को ऐड कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम हीट पंप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लो टेम्परेचर पे हीट निकालना मतलब रेफ्रिजरेटर, और हाई टेम्परेचर पे हीट को ऐड करना, इसका मतलब उसको बोलेंगे हम हीट पंप। इसका एग्जांपल देता हूं मैं। इमेजिन करो हमारे एयर कंडीशनर है, अब उस एयर कंडीशनर को हम समर में यूज करेंगे, समर में को लो मेंटेन करना है, मुझे 10 डिग्री सॉरी मुझे अगर 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के वहां के हीट को मुझे रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। तो जो भी एयर कंडीशनर ये काम करेगा उसको मैं बोलूंगा रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, इन विंटर आउटसाइड टेम्परेचर इज वेरी लेस देन दी इनसाइड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अभी हमें रूम का टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करना है, ज्यादा मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भी आउटसाइड की हीट रूम के अंदर डालनी पड़ेगी, सो दैट अंदर का टेम्परेचर बिकम्स मोर, राइट। तो यहाँ पे जो अभी रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे जो एयर कंडीशनर काम करेगा उसको मैं बोलूंगा हीट पंप, क्योंकि वो सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेके सिस्टम में डाल रहा है, देयरफॉर इट इज अ हीट पंप। और जब सिस्टम से हीट निकाल के हम सराउंडिंग में रिजेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। नाउ विल सी द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स अगर हम इंजन की बात करेंगे, इंजन में क्या होता है, इंजन में हम उसका जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, राइट। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन और वर्क डन, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, और इसको बोलते हैं एफिशिएंसी विच इज यूज्ड टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द हीट इंजन, हीट इक्विपमेंट। उसी प्रकार से इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हम रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट का जो परफॉर्मेंस जज करते हैं, वो परफॉर्मेंस जज करने के लिए यहाँ पे इफिशिएंसी यूज नहीं होती, जो टर्म यहाँ पर यूज की जाती है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, coefficient of performance is a term which is used to judge the performance of refrigerating equipment, and it is defined as the ratio of amount of heat extracted to the work done, और इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू दी वर्क डन। दोनों का जो रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप इस दोनों डेफिनेशन को अगर कंपेयर करते हो, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, तो आपको देखो क्या दिख रहा है, एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, एफिशिएंसी इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क अपॉन हीट, और रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में सीओपी इट इज अ रेशियो ऑफ
हीट अपॉन वर्क। तो यू कैन से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। और ये आप देखेंगे आगे कार्नोट एफिशिएंसी में भी। तो COP इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो हम फाइंड करते हैं हाउ टू फाइंड द COP ऑफ फॉर द रेफ्रिजरेटर एंड COP फॉर द हीट पंप। तो दिस इज द रेफ्रिजरेटर, राइट। रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो हियर द रेफ्रिजरेटर में हीट रिजेक्ट हो रही है फ्रॉम स्पेस टू आउटसाइड, राइट। स्पेस से हम हीट निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट, सॉरी COP क्या होता है, डेफिनेशन क्या है COP? इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। एंड व्हाट इज द डिजायर्ड आउटपुट हियर? डिजायर्ड आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट फ्रॉम द लो स्पेस। ये जहां पे ये जो लो स्पेस है, फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो लो स्पेस है या लो स्पेस से हीट निकालना, ये हमारा यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट है। एंड दैट डिजायर्ड आउटपुट नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट, दैट इज QL। तो यहाँ पे क्या बनेगा, desired output nothing, COP is nothing but the heat taken from the cold body upon work done, that is equals to QL upon W. What is QL? QL is the desired output which is nothing but the amount of heat to be absorbed from the substance. So this फिर से आप नोट कीजिए, COP for the refrigerator it is equals to QL upon W, that is QL W मतलब वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं? रेशियो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड एंड अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। सी हियर वर्क डन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड माइनस अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, दोनों का जो रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन, और वो वर्क डन यहाँ पे पुट किया गया है। नाउ विल फाइंड द COP फॉर द हीट पंप। सो अगेन COP फॉर्मूला वही है, दैट इज डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। अब यहाँ पे आप देखोगे पंप में, व्हाट इज द डिजायर्ड आउटपुट इन पंप? डिजायर्ड आउटपुट इन द पंप इज टू डिलीवर द हीट टू द हॉट बॉडी, टू डिलीवर द हीट टू द हॉट। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, हीट को डिलीवर करना है। यहाँ पे ये साइड में जो आपको डायग्राम दिख रही है हाउस की, वहां पे हीट देखो ऐड हो रही है, तो हमें यहाँ पे हॉट बॉडी को हीट डिलीवर करना है। तो ऊपर अगर देखोगे आप इसमें, तो आपको दिख रहा है हीट डिलीवर। सो डिजायर्ड आउटपुट इज द हीट डिलीवर, दैट इज QH। यहाँ पे जो हीट पंप में जो डिजायर्ड आउटपुट रहेगा दैट विल बी द QH। Therefore COP for the heat pump is given as desired output, that is the amount of heat delivered, that is QH upon W। तो यहाँ पे सिर्फ देखोगे आप QH चेंज हो रहा है, बाकी वर्क डन सेम है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर COP फॉर द हीट पंप। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ द हीट पंप। थोड़ा ध्यान दो, मैथमेटिकल पोर्शन है। देखो यहाँ पे COP फॉर द रेफ्रिजरेटर इट इज गिवन बाय QH अपॉन W, हमने देखा है QH इज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव। देन फॉर्मूला रहेगा उसका QH अपॉन QH माइनस QL बराबर है। देन इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 प्लस QH अपॉन 1 प्लस QL अपॉन QH माइनस QL। रीअरेंज करने के बाद आपको वही टर्म मिलेंगी। सो दैट कैन बी इक्वल टू 1 वैसे के COP फॉर द पंप। अभी हम इससे ऐसा बोल सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ग्रेटर और लेस देन 1 depending upon the type of system, COP of the heat is always greater than 1. We'll see the unit of refrigeration. हीट, जब हीट इक्विपमेंट हम यूज करते थे तो हीट इक्विपमेंट में हम उसका रेटिंग कैसे लेते थे? उसका रेटिंग हम लेते थे इन टर्म्स ऑफ, और उसका कैपेसिटी हम कैसे काउंट करते थे? कैपेसिटी को काउंट करते थे हम इन टर्म्स ऑफ किलोवाट या फिर पावर HP। इस प्रकार से उसकी कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस करते थे। सिमिलरली इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, द कैपेसिटी और रेटिंग और पावर कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, और को बोला जाता है TR। TR स्टैंड फॉर टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगेन रिपीटिंग, the capacity or rating of refrigerating machine is expressed in terms of refrigeration, whereas in case of heat engine the capacity of the heat engine expressed in terms of और किलोवाट। लेकिन रेफ्रिजरेशन में वो रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ TR डिफाइन की जाती है, और दिस TR कैन बी डिफाइंड एज
the refrigerating effect produced by the melting of 1 ton of ice from and at 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इन 20, यहाँ पे वाटर वर्ड निकल गया, इन 24 आवर्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आप आइस लेते हो, इफ यू टेक द 1 टन ऑफ आइस, द अमाउंट ऑफ सॉरी इफ यू टेक द 1 टन ऑफ आइस और उस आइस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, then the amount of heat required to be added in that ice in 24 hours to convert this ice into water, it is a terms of refrigeration. इसको अलग लैंग्वेज में भी आप डिफाइन कर सकते हो, the quantity of heat required to be removed from 1 ton of water at 0 degree centigrade temperature to convert it into ice at the same temperature within 24 hours. फिर से इसके डेफिनेशन को मैं समझा रहा हूं। अगर आपने 1 टन ऑफ वाटर लिया और 1 टन ऑफ वाटर को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू आइस, तो 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड इन 24 आवर्स टू कन्वर्ट दिस वाटर इनटू आइस, इट इज कॉल्ड टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 टन वाटर अगर हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो 1 टन वाटर में से द अमाउंट ऑफ हीट हमें निकालनी पड़ेगी उसको कन्वर्ट करने के लिए आइस में 24 आवर्स में, उस हीट को हम बोलेंगे tons of refrigeration, and it is given as 1 ton of refrigeration, it is equals to 210 kilojoules per minute, और SI यूनिट में बोलेंगे इसको, it is also equals to 3.5 किलोवाट। अब मुझे बताओ कि अगर आप एयर कंडीशनर लेते हो और एयर कंडीशनर का जो स्पेसिफिकेशन है, सपोज इट इज 1 टन, आपने 1 टन का एयर कंडीशनर घर में लेके आया, तो 1 टन का रेफ्रिजरेशन इन टर्म्स ऑफ दिस हीट यूनिट किस प्रकार से डिफाइन करोगे कि वो जो 1 टन का एसी है, दैट 1 टन ऑफ एसी हैज अ कैपेसिटी टू रिमूव द हीट ऑफ 210 किलो जूल्स इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 1 टन का एसी 210 किलो जूल्स ऑफ हीट निकाल सकता है, ये उसकी कैपेसिटी हो गई। नाउ विल सी रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा इन 3rd ईयर, राइट? उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं व्हाट इज कार्नोट साइकिल। जो कि कार्नोट साइकिल होगी उसका रिवर्स मतलब रिवर्स कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल हमने कहां पर यूज की? कार्नोट साइकिल को हमने यूज की हीट इंजन में, राइट? तो कार्नोट, व्हाट इज कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल, इट इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल व्हिच इज सजेस्टेड बाय द वन साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट हुज नेम वाज सादी कार्नोट। वो क्या बोल रहा कि अगर कोई भी हीट इंजन, अब देखो व्हाट इज द इंजन, what is engine? Engine is a device which convert heat into mechanical work. इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके ऊपर कार्नोट क्या बोलता है? कार्नोट बोलता है कि इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज डन इन अ साइक्लिक मैनर, अंडर जो प्रोसेस वो बता रहा है उस प्रोसेस के थ्रू अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, कौन से दो प्रोसेस? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट एंड मैकेनिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये अगर साइक्लिक मैनर में हम अंडर 4 प्रोसेस करते हैं, वो 4 प्रोसेस है 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देन द व्हाटएवर एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्शन जो होंगी दैट विल बी 100%। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल work, you will get 100% efficiency as per the Carnot statement, but it is not possible, it is a hypothetical statement। वो सिर्फ कंपैरिजन स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये साइकिल को किस प्रकार से ड्रॉ किया गया, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं कार्नोट साइकिल को, क्योंकि हमको रिवर्स कार्नोट साइकिल देखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस 1.1 to 2, there is a isothermal expansion। isothermal मतलब adiabatic, during this adiabatic there is no heat transfer। then 2 to 3, this is a isentropic, sorry, पहला isothermal expansion है। during isothermal expansion temperature remain constant but there is a heat transfer। then from 2 to 3 there is the isentropic मतलब adiabatic, तो यहाँ पे किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। then 3 to 4 will be again isothermal compression and 4 to 1 it will be isentropic compression। so first 1 to 2 isothermal expansion, 2 to 3 isentropic expansion, then isothermal compression and then isentropic compression। तो ये साइकिल कैसी है? दिस साइकिल इज क्लॉकवाइज।
आप देखोगे साइकिल कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज साइकिल हो रही है। दिस इज द पीवी डायग्राम एंड यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज द टीवी डायग्राम। अब हमारी जो डायग्राम हमें जो साइकिल चाहिए दैट इज रिवर्स कॉर्नर साइकिल। अब कॉर्नर साइकिल के पहले यहाँ पे रिवर्स वर्ड लगा, इसका मतलब क्या हो गया, कॉर्नर साइकिल की जो उल्टी साइकिल रहेंगी दैट इज कॉल्ड रिवर्स कॉर्नर साइकिल। यहाँ पे रिवर्स वर्ड क्यों किया, क्योंकि यहाँ में हमें रेफ्रिजरेटर की बात करनी है, हमें हीट इंजन की बात करनी नहीं है। तो हीट इंजन के लिए जिस प्रकार से कॉर्नर साइकिल काम करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स में वही साइकिल काम करेंगे फॉर रेफ्रिजरेटर, राइट। तो उसको यहाँ पे मैं देखो, इसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट एफिशिएंसी TH minus TC upon TH. Efficiency is given by this expression where TH is the temperature of the hot body and TS is the temperature of थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे TC चाहिए, TC is the temperature of cold body, वहां पे कॉपी पेस्ट हो गया। TH is the temperature of hot body and TC is the temperature of cold body। अभी हम देखेंगे रिवर्स कॉर्नर साइकिल। सो लाइक इन हीट इंजन हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी इज अचीव बाय कॉर्नर साइकिल। जिस प्रकार से कॉर्नर साइकिल में हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी अचीव हो सकती है उसी प्रकार से अगर हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस रिवर्स कॉर्नर साइकिल मैनर अगर कैरी करेंगे तो यहाँ पे भी हमको हाईएस्ट पॉसिबल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल सकता है। ये कहना है कॉर्नर का अंडर रिवर्स कॉर्नर साइकिल। So this is again a hypothetical cycle. It is not possible to achieve the 100% efficiency. अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ कॉर्नर साइकिल के साथ। देखो ये कॉर्नर है, अब दोनों को आप कंपेयर करो। कॉर्नर साइकिल भी क्या हो रहा, आप देखोगे द साइकिल इज क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज, मतलब 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड देन 4 to 1। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका अपोजिट हमको यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे कैसे हो रहा, यहाँ पे है 1 पॉइंट। सो 1 to 2 प्रोसेस वही है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है। 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 is isothermal compression, then this is the 3 to 4 is isentropic expansion, then isothermal expansion. So here the direction of transformation of heat is in the anti-clockwise direction. हमेशा याद रखना जब डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक इन कॉर्नर साइकिल, तो जो भी डिवाइस की बात करेंगे दैट विल बी अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, राइट। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पे पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। जिस प्रकार से रेफ्रिजरेटर को हमको पावर देना पड़ता है, हीट पंप को हमें पावर देना पड़ता है बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। Now we'll see the expression for the efficiency or COP of the reverse corner cycle. पहली प्रोसेस लेते हैं हम, प्रोसेस इज 1-2 is the isentropic compression. So in this isentropic compression, being isentropic, that is adiabatic, there will not be any kind of heat transfer, absorbed or rejected, right? Second process is isothermal compression. In isothermal compression, heat there will not be change in temperature, लेकिन there will be a transfer of heat. यहाँ पे heat transfer होंगी and that heat transfer is given by Q23. प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है सॉरी प्रोसेस इज 2-3। ये जो प्रोसेस 2-3 प्रोसेस है, 2-3 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे Q23 प्रोसेस। अब हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज change in entropy into temperature. It is a product of change in entropy. देखो this is the change in entropy into the temperature. Change in entropy मतलब entropy at point number 2, यहाँ पे entropy और यहाँ पे entropy दोनों का difference यहाँ पे S2 minus S3 and temperature कौन सा यहाँ पे, temperature is T3. T3 is equals to T2. Therefore heat transfer during the process 2-3 is T3 into S2 minus S3. तो दिस T3 इज नथिंग बट T2, तो यहाँ पे फिर से T2 लिखा मैंने यहाँ पे एंड अगेन इट विल बी इन द ब्रैकेट S2 minus S3. And next process number 3. This process number 3 is the isentropic expansion process. 3-4 is the isentropic expansion process. So this 3-4 ये जो process है isentropic expansion. Again during isentropic process there will not be any kind of heat transfer, right? However in the isothermal process there will be a heat transfer. So 4-1 यहाँ पे जो process है 4-1 यहाँ पे heat transfer होगा और this heat transfer is nothing but our refrigerating effect. यहाँ पे in this process there will be a heat absorption. यहाँ पे heat absorption होगा and this heat absorption is nothing but the refrigerating effect which is given as here heat transfer during process Q1 sorry 4-1 Q41, that will be again it will be a entropy difference.
सो 4-1 एंट्रोपी क्या आएंगे यहाँ पे S1 माइनस S4 और टेम्परेचर विल बी आइदर T1 और T4। तो आप देखोगे इस प्रकार से इसको रीअरेंज करने के बाद फाइनल इक्वेशन आपको मिला Q41 इक्वल टू T1 इन द ब्रैकेट S2 माइनस S3। So where T1 is the temperature of cold body and T2 is the temperature of hot body. Finally, COP अब फाइंड करेंगे हम। COP is given by ratio of heat absorbed upon work done. So heat absorb के लिए relation हमारे पास ये है T1 S2 minus S3. This is a relation for heat absorb. Then work done is given by the expression work done is nothing but heat rejected by heat absorbed. So that is Q2 minus Q41. तो अभी पुट अप कर दे टू दिस फॉर्म अब वर्क डन इक्वल्स टू T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दिस S2 माइनस S3 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रखा T2 माइनस T1 माइनस S3। सो वी फाइंड द COP। तो इस तरह COP इक्वल्स टू हीट एब्सॉर्ब। आप वो वैल्यू को पुट करो, वैल्यू पुट अप करने के बाद नाउ सी दिस S2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ऊपर भी S2 माइनस S3, यहाँ पे S2 माइनस and upon P2 minus 1 और C2 reverse cycle। और आप देखा efficiency of P2 minus T1 और T1 ये ऊपर है, दोनों का कंपेयर ये value for COP of the refrigerator and this value for the efficiency of the heat, they are just opposite. You can say they are reciprocal of each other। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था COP is the reciprocal of efficiency, वो यहाँ पे प्रूव हुआ, both are reciprocal of each other। Now we'll see the vapor refrigeration process, that is vapor compression refrigeration system। Just a minute। हाँ क्या हुआ, हाँ so various refrigeration systems which are used for producing the cold confinement are ice refrigeration, vapor compression system, वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम एंड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये चार, इसके बाद भी बहुत सी सिस्टम्स है लेकिन वो अभी हमें बेसिक में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो चार सिस्टम है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो इन दिस वर्ल्ड इफ वॉट एवर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट आर यूज, these refrigeration equipment are 99% based on vapor compression refrigeration system। All right, so we'll see this system in details। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है VCR सिस्टम। सो ड्यूरिंग दिस VCR साइकिल अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। मैंने बताया था पहले कि रेफ्रिजरेंट को हम यूज करते which absorb the heat from the substance that circulate continuously through the following four process। ये जो रेफ्रिजरेंट होता है ये सिस्टम में फ्लो करता है थ्रू दी फोर प्रोसेसेस एंड दैट फोर प्रोसेसेस आर, चार स्टेजेस में वो फ्लो करता है। फर्स्ट स्टेज इज द इवापोरेशन स्टेज जहां पे हीट एब्सॉर्ब की जाती है। सेकंड स्टेज इज द कंप्रेशन स्टेज जहां पे उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर को रेज किया जाता है। फोर्थ स्टेज इज द कंडेंसेशन स्टेज जहां पे जो रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट रहती है वो हीट को रिजेक्ट किया जाता है। और आखिरी की जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन स्टेज। ये इवापोरेशन नहीं, इट इज एक्सपांशन स्टेज। यहाँ पे इवापोरेशन लिखा हुआ है, इट इज नॉट इवापोरेशन, इट इज एक्सपांशन स्टेज। एंड ड्यूरिंग एक्सपांशन स्टेज व्हाट हैपन, यहाँ पे हम प्रेशर का रिडक्शन करते फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये चार स्टेजेस से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है इन VCR साइकिल। अब वो कैसे फ्लो करता है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट है VCR सिस्टम के। ये जो चार स्टेजेस से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो चार स्टेजेस के लिए यहाँ पे चार कंपोनेंट को यूज किया गया है। सो दिस फोर कंपोनेंट्स आर हियर, दैट इज इवापोरेटर। नंबर वन इज द इवापोरेटर। सो इवापोरेटर नंबर वन, देन सेकंड वन इज द कंप्रेसर, राइट। थर्ड वन इज द कंडेंसर, and last one is the expansion device चार।
तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की मैंने 4 प्रोसेस आपको बताई थी, इवापोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड एक्सपांशन, ये 4 डिवाइस में कैरी होती है और उस प्रोसेस का सीक्वेंस भी यही रहता है। इसी सीक्वेंस में वीसीआर सिस्टम काम करती है। कैसे करती है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। जो 4 कंपोनेंट है ना, 4 कंपोनेंट का लोकेशन इन रेफ्रिजरेटर कहां पर होता है, बिकॉज रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द वीसीआर साइकिल। रेफ्रिजरेटर साइकिल पर काम करता है। तो वीसीआर साइकिल में ये 4 डिवाइसेस कहाँ का, सॉरी, रेफ्रिजरेटर में ये 4 डिवाइसेस कहाँ का होते हैं हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पहला डिवाइस है इवापोरेटर। तो ये हो गया इवापोरेटर। तो जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर पोर्शन होता है ना, फ्रीजर में यहाँ पे कॉइल होती है, आप देखोगे हाथ लगा के तो एक एम्बोसिंग जैसा आपको फील होता है। वो कॉइल जो होती है, दैट कॉइल इट इज कॉल्ड इवापोरेटर, एंड थ्रू दैट कॉइल रेफ्रिजरेंट यूज टू फ्लो। देन सेकंड डिवाइस आता है हमारा इवापोरेटर के बाद, दैट इज कंप्रेसर। सो हियर इट इज अ कंप्रेसर। कंप्रेसर कहाँ होता है, आग अगर देखोगे पीछे के साइड, रेफ्रिजरेटर का जो पीछे का पोर्शन होता है, सबसे नीचे एक आपको ब्लैक कलर का बॉल जैसा दिखता है, इलिप्टिकल शेप पोर्शन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्रेसर। एंड दिस कंप्रेसर इज अ हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। ये कंप्रेसर पूरा सील्ड रहता है, मतलब इसकी मोटर और इसका जो कंप्रेसर वगैरह जो पिस्टन जो होता है वो एक ही केसिंग में इन्वॉल्व रहता है, ताकि उसमें से रेफ्रिजरेंट का किसी प्रकार से लीकेज ना हो। तो ये हो गया कंप्रेसर। और फिर आता है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल कहाँ होती है, रेफ्रिजरेटर के एकदम पीछे, पीछे के साइड में आप देखोगे तो वहां पे आपको ब्लैक कलर की कंडेंसर कॉइल मिलेगी। और इस कंडेंसर कॉइल के थ्रू रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। जब वो इवापोरेटर से हीट लेके बाहर आएगा, वो इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी हीट को रिजेक्ट करता है एटमोस्फियर को। एंड लास्ट डिवाइस इज दी एक्सपांशन वॉल। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये एक्सपांशन, ये जो दिख रहा है ना कोई छोटी बड़ी ट्यूब जैसा, ये है एक्सपांशन। इसको निकालता मैं, और ये जो दिख रहा पोर्शन यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एक्सपांशन डिवाइस। और दूसरा इसको नाम दिया गया कैपिलरी ट्यूब। तो विल सी द वीसीआर साइकिल थ्रू ब्लॉक डायग्राम। तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ वीसीआर साइकिल। इसको मैं आपको समझा कर देता हूँ। विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इवापोरेटर। इमेजिन करो ये हमारा इवापोरेटर नंबर 1। इवापोरेटर जो को बोलता है नंबर 1। अब इवापोरेटर में क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे कलर से कुछ अलग शो किया गया। तो कलर का मीनिंग यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर गैस एंड लिक्विड। तो एट दिस पॉइंट दिस इज द इनलेट, दिस इज द इनलेट टू द इवापोरेटर। यहाँ पे दिस इज इनलेट टू द इवापोरेटर। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट अवेलेबल रहेगा, इट विल बी इन द लिक्विड फेज। जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड एंड गैस। जनरली क्या होता है, वो मिक्सचर फॉर्म में रहता है, बट 95% वो लिक्विड रहता है एंड 5% इट इज इन दी वेपर फॉर्म। इसलिए उसको बट हम टेम्परेचर मेंटेन करना, इट इज 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस आर जस्ट एग्जांपल के लिए मैं लिया हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे इवापोरेटर में हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टू मेंटेन 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इवापोरेटर, हाउ टू मेंटेन द प्रेशर कितना, 3.5 बार। ये कहाँ से लिया मैंने, ये मैंने स्टीम टेबल, सॉरी, ये मैंने रेफ्रिजरेशन टेबल से लिया। अगर यूज कर रहा हूँ R134, तो 134 का मैं रेफ्रिजरेशन टेबल निकालूंगा, और रेफ्रिजरेशन टेबल के लिए आई विल सी व्हाट इज द सैचुरेशन प्रेशर एट 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो भी प्रेशर आएगा वो प्रेशर मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, 3.5 बार का प्रेशर है। कितने प्रेशर पे यहाँ पे रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, दिस रेफ्रिजरेंट विल एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेटर में कुछ चीजें रखी जाएंगी, वहां पे चीजें अपने आप रेफ्रिजरेट करता हो। तो आपने क्या किया, बाहर से कुछ चीजें ली, से फ्रूट्स लिए बाहर से, आपने करता एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो fruit at atmospheric temperature, now you have kept the
इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर। बट ये जो कन्वर्शन हो रहा है यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ने लैटेंट हीट को Hello, एब्सॉर्ब किया। यस यस, sir, your screen is not visible. माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Yes, ओके, sir. आई विल अगेन शो इट, जस्ट अ मिनट। आदित्य, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. आदित्य, हाँ ओके हाँ सर, ओके। सो हाँ, तो यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफर हुआ इन द इवापोरेटर हीट ट्रांसफर या हीट एब्सॉर्प्शन टेकन प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो आप देखोगे जैसे कन्वर्शन के कारण यहाँ पे लिक्विड नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, सारा का सारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। और एट द आउटलेट ऑफ द इवापोरेटर, जो इवापोरेटर का आउटलेट है, यहाँ पे नाउ यू आर हैविंग अ रेफ्रिजरेंट वेपर बट एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज 4.4 एंड 3.5 बार। ऊपर देखोगे, देखो सी हियर, यहाँ पे कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज रेफ्रिजरेंट वेपर। वो कितना लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर है, क्योंकि हमने इवापोरेटर में बहुत कम टेम्परेचर कम प्रेशर मेंटेन किया है और उसी टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट बाहर आता है, बट इन दी वेपर फॉर्म। तो नाउ दिस इज द सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे, दैट इज कॉम्प्रेसर। ये हो गया कॉम्प्रेसर। अब कॉम्प्रेसर क्या करेगा, वाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉम्प्रेसर? वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दो ही चीज की जरूरत है। दो चीज कौन से, इवापोरेटर चाहिए, इवापोरेटर क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा। और दूसरा हमको कंडेंसर चाहिए, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर वो इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट ने जो भी हीट को एब्सॉर्ब किया उस हीट को रिजेक्ट करेगा इन दी कंडेंसर, राइट। लेकिन ये इतने दो इक्विपमेंट को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व होता था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एडिशनल दो इक्विपमेंट यूज किए, दैट इज वन इज कंप्रेसर एंड अनदर इज एक्सपांशन। उसकी जरूरत इसलिए है टू मेंटेन दी प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हमको रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना है, और रेफ्रिजरेंट फ्लो कब होगा, व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। बिना प्रेशर डिफरेंस का कोई भी चीज फ्लो नहीं हो सकता। यहाँ पे टू मेंटेन दी फ्लो हमें यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना है, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस इज मेंटेन बाय expansion device and compressor device। और एक्सपांशन डिवाइस मेंटेन कर रहा है। इससे क्या फायदा हो रहा है? अब कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर को हमने इसलिए यूज किया, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट वेपर है, दिस रेफ्रिजरेंट वेपर इज एट वेरी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर लो होने के कारण प्रेशर भी लो है। अब वो इतने लो प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट अपने आप वहां से बाहर नहीं आएगा, तो कौन करेगा, कंप्रेसर करेगा। सो कंप्रेसर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक वो क्या करेगा, दिस कंप्रेसर विल सक दिस फ्रॉम द इवापोरेटर, जो कि यहाँ पे 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 3.5 बार पे अवेलेबल है, उसको सक करेगा। सक करने के बाद अंदर उसको यहाँ पे कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद दिस कंप्रेसर विल रेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। और कंप्रेस के बाद का जो अभी आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर जो भी रेफ्रिजरेंट अवेलेबल रहेगा, उसका देखो आप कितना प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर इज 10.6 बार, और इतने प्रेशर पे टेम्परेचर विल बी 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने यहाँ पे इसलिए लगाया कि हमने यहाँ से रेफ्रिजरेंट वेपर जो बहुत ही कम प्रेशर पे अवेलेबल थी इवापोरेटर में, उसको सक किया, अदरवाइज वो अपने आप बाहर नहीं आता। अब इसका हम टेम्परेचर प्रेशर क्यों बढ़ा रहे, व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द कंप्रेस रेफ्रिजरेंट। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि हमें क्या करना है, ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर है जो इवापोरेटर के अंदर है, उसको रीयूज करना है। रीयूज करना है मतलब उसको फिर से हमको वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन रेफ्रिजरेंट इज इन द लिक्विड फॉर्म देन ओनली इट
एब्सॉर्ब द मैक्सिमम हीट। तो हमें इस रेफ्रिजरेंट की को जो अभी वेपर फॉर्म में है उसको फिर से रीयूज करने के लिए, फिर से उसको यूज करने के लिए उसको वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें उसको कहाँ भेजना है, हमें भेजना है कंडेंसर में। अब कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में वो हीट को रिजेक्ट करेगा। अब हीट को किसको रिजेक्ट करेगा, वो हीट को रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर को। अब देखो एटमॉस्फेरिक एयर जो अवेलेबल होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 35 सेंटीग्रेड, जो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। अब देखो अगर आप ये रेफ्रिजरेंट वेपर जो कि इवापोरेटर के इनलेट पे 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल है, वो रेफ्रिजरेंट वेपर एट 4.4 डायरेक्टली अगर आप कंडेंसर में भेजोगे उसी टेम्परेचर के ऊपर, तो वहां पे हीट ट्रांसफर होगा क्या, आप हीट ट्रांसफर होगा तो उल्टे डायरेक्शन में होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर फिर से रेफ्रिजरेंट में आ जाएगा और रेफ्रिजरेंट सेपरेटेड हो जाएगा कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 4.4 है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 है, तो वहां पे रिवर्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होंगी। वो हमें नहीं करना, हमें तो उल्टा करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और वो लेके जाने के लिए हम यहाँ पे कंप्रेसर को यूज कर रहे हैं। कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को फ्रॉम 4.4 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जा रहा है बाय कंप्रेसिंग। एंड देयरफॉर इन द कंडेंसर व्हाट हैपन, कंडेंसर में हमारे पास जो भी रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है उसका अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो दैट टेम्परेचर इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ये जब इस कंडेंसर कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा तो कंडेंसर कॉइल के ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर भी फ्लो करेगी। एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट, और इसके अंदर की हीट आएंगी एटमॉस्फेयर को, एंड ड्यू टू मतलब ये रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी हीट है हीट विल बी रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, और ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ द एयर ये होगी एयर, ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ द एयर व्हाट विल हैपन, दिस refrigerant will get converted from vapor to liquid again। लेकिन यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हीट ट्रांसफर अगेन टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर, जैसे कि इवापोरेटर में हो रहा था। इवापोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एब्सॉर्ब हो रही थी, उसी प्रकार से कंडेंसर में भी हीट ट्रांसफर या हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखोगे आप यहाँ पे एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर के आउटलेट पे जो रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है उसका प्रेशर है 10.6 बार एंड टेम्परेचर इज 4 रेड है, और यहाँ सॉरी येलो टाइप आ रहा है, येलो का मतलब होता है हाई प्रेशर लिक्विड। तो यहां से जब वो बाहर निकलेगा इट विल बी ओनली इन द लिक्विड फॉर्म बट एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब देखो वो कहां पे जा रहा है, इट इज गोइंग टू द एक्सपांशन वॉल, फोर्थ डिवाइस। अब कौन सा चौथा डिवाइस है, ये एक्सपांशन वॉल, वो एक्सपांशन वॉल में जा रहा है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक्सपांशन वॉल क्यों लगा है, क्यों डायरेक्टली उसको हम इवापोरेटर में पास नहीं करते, क्यों नहीं करते, अगेन प्रेशर डिफरेंस आप देखोगे, यू हैव टू मेंटेन द प्रेशर इन द इवापोरेटर, हाउ मच 4.4, और 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड इवापोरेटर में प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रेशर शुड बी 3.5 बार। अगर यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर 3.5 बार होगा देन ओनली 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैन बी मेंटेन इन द इवापोरेटर। देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना है, हियर प्रेशर इज 10.6 बार, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्रेशर को 10.6 बार से नीचे लेके आना है, हाउ मच 3.5 बार तक, और वो काम यहाँ पे कर रहा है एक्सपांशन डिवाइस। तो एक्सपांशन डिवाइस उसको कम करेगा प्रेशर को। एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अब देखो यहाँ पे कलर, देखो कलर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कलर येलो, येलो मतलब क्या होता है हाई प्रेशर लिक्विड, और यहाँ पे अगर आप कलर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब होता है लो प्रेशर गैस एंड लिक्विड। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे 100% कन्वर्शन उसका नहीं हो रहा है, गैस टू लिक्विड, सॉरी यहाँ पे जो 100% लिक्विड अवेलेबल नहीं, जैसे यहाँ पे लिक्विड 100% है, यहाँ पे आपको 100% लिक्विड नहीं मिल रही एट द आउटलेट ऑफ द एक्सपांशन वॉल। व्हाई,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है एक्सपांशन डिवाइस में क्या होता है, एक प्रकार का एक पैसेज होता है, वो पैसेज फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और क्योंकि पाइप पहले बड़े डायमीटर का होता है फिर छोटे डायमीटर का हो जाता है, और जब वो रेफ्रिजरेंट छोटे डायमीटर स्मॉल डायमीटर के थ्रू पास करेगा तो वहां पे दिस स्मॉल डायमीटर विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर। But what happened due to this resistance offered by the small diameter tube, फ्रिक्शन इज देयर, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड, और वो हीट जनरेट होने के कारण बिकॉज ऑफ दैट हीट सम अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट गेट इवापोरेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। वो हीट वहां पर फ्रिक्शन के कारण जो डेवलप हो रही है, वो हीट के कारण हम थोड़ा लिक्विड को यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, और जो कि कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, एंड देयरफॉर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर इज एंटरिंग द इवापोरेटर। लेकिन इससे हमारा थोड़ा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है। अगर हम 1 kg रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, 1 kg रेफ्रिजरेंट अगर हम सब्सटेंस में लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, तो 1 kg में से ओनली 995 grams of liquid is available in the evaporator for absorbing the heat. 5 grams of refrigerant liquid is getting converted into a vapor due to evaporation into expansion wall, जो कि हमारा लॉस है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का। So in this way this vapor compression system works। इसको शॉर्ट फॉर्म में VCR साइकिल बोलते हैं, और सारे के सारे 99% रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट इसी साइकिल के ऊपर वर्क करते हैं। एग्जांपल की बात कर लूं तो घर में जो आपके रेफ्रिजरेटर है वो VCR साइकिल के ऊपर रन करता है, फिर वाटर कूलर जो आपने कॉलेज में देखे वो भी इसी साइकिल के ऊपर रन करता है, इवन एयर कंडीशनर जो होता है वो तक इसी साइकिल पे रन करता है। कोल्ड स्टोरेज जहां पे आइस बनता है वो भी VCR साइकिल के ऊपर रन करता है। ऑलमोस्ट 99% रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट वर्क ऑन दिस VCR साइकिल, और VCR साइकिल का प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। Now this is a diagram you can see here. So now this is the animation how the refrigerator works। अब देखोगे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, समझा के देता आपको। चलो कंप्रेसर से स्टार्ट करें अपन। ये कंप्रेसर है, ये यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट एंटर इन दी कंडेंसर। ये कंडेंसर है जो दिख रहा है पे। कंडेंसर घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है वहां पे नेचुरल कन्वेक्शन होता है, वहां पे कोई फैन यूज नहीं करते हम कंडेंसर के पीछे। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट रिजेक्ट हो रही है एटमॉस्फेयर को, देन इट इज गोइंग टू एक्सपांशन डिवाइस। एक्सपांशन डिवाइस में क्या हो रहा है, एक्सपांशन डिवाइस में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू इवापोरेटर, एंड देन दिस रेफ्रिजरेंट इज एंटरिंग द इवापोरेटर। दिस इज अ इवापोरेटर। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लो होते हुए रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, इस इवापोरेटर में जो भी चीज रखी हुई है उसके अंदर की हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड देन इट मेंटेन द टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया था 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है। देन इनसाइड द इवापोरेटर देयर इज अ फैन, वहां पे फैन होता है। फैन क्या करता है, अंदर की जो कूल एयर है, हम बात करें इवापोरेटर मतलब फ्रीजर पोर्शन। अगर रेफ्रिजरेटर देख रहे हो तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीजर पोर्शन होता है ना, वहां इवापोरेटर होता है। देयर इज अ फैन। कभी आप खोल के देखते हो ऐसी आवाज आती है, वो आवाज क्या की है, फैन की आवाज है। वो फैन क्या करेगा, कोल्ड एयर थ्रू आउट द इवापोरेटर, थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर, पूरे रेफ्रिजरेटर में वो कोल्ड एयर को फ्लो करता है। देयरफॉर कूलिंग इफेक्ट वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इन दिस वे दिस रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन VCR साइकिल कैन बी एक्सप्लेन। फिर से due to absorption of heat, this liquid get converted into vapor, and this vapor refrigerant will again enter the compressor. From the compressor it will go to condenser to expansion, again to expansion it will go to evaporator coil। यहाँ पे काम करने के बाद फिर से it will enter the compressor, and this cycle is repeated for number of times and you get the cooling effect। See next portion, we'll recap this cycle। So fourth process, पहला प्रोसेस कौन सी, इवापोरेशन प्रोसेस। सेकंड इज कंप्रेशन, थर्ड वन इज द कंडेंसेशन जहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर को, फोर्थ वन इज द एक्सपांशन वॉल। अब ये प्रोसेस को हम लेते हैं। पहली प्रोसेस 4-1 में क्या हो रहा है, इन दी 4-1 प्रोसेस 2 फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर
is evaporated through the heat transfer from the refrigerator space in the evaporator. मतलब evaporator में हो रहा है यहाँ पे heat transfer. जैसे refrigerant flow करेगा यहाँ पे heat transfer होगा, and in the heat transfer Q in amount of heat will be absorbed by the refrigerant. Q in amount of heat इसने यहाँ पे absorb किया, Q in, then वो पहुंच गया अभी कंप्रेसर के पास. अब कंप्रेसर में क्या होगा, प्रोसेस है 1-2 प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी कंप्रेसर. कंप्रेसर में क्या होगा, दिस रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट विल बी कंप्रेस टू रिलेटिवली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर. फेज वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी. राइट, अभी हम पहुंच गए पॉइंट नंबर 2 पे. अब प्रोसेस आ रही है 2-3. प्रोसेस 2-3 इज द कंडेंसेशन प्रोसेस. यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो इट विल रिजेक्ट द हीट टू द सराउंडिंग एंड विल कम टू द पॉइंट नंबर 3. लास्ट प्रोसेस इज प्रोसेस 3-4. 3-4 प्रोसेस के थ्रू जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो इट विल मेंटेन दी प्रेशर को ड्रॉप करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर दैट इज कंडेंसर प्रेशर टू इवापोरेटर प्रेशर. जैसे रेफ्रिजरेंट का, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का फेज भी लिक्विड बन गया, उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो गया. नाउ इट इज रेडी फॉर सेकंड साइकिल, और सेकंड साइकिल के लिए फिर से एंटर करेगा इवापोरेटर में. विल सी द रेफ्रिजरेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीसीआर साइकिल ऑन द पीएच चार्ट और टीएस चार्ट. अभी हमको क्या करना है, वीसीआर साइकिल का एनालिसिस करना है. मतलब यू विल बी हैविंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन द वीसीआर साइकिल, और न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इस साइकिल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पीएच चार्ट के ऊपर, ताकि हम उसका परफॉर्मेंस जज कर सके. वो किस प्रकार से कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, मतलब सीओपी दे रहा है, कितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और कितना ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर सकता है. वो सब पता फाइंड करने के लिए हमें इस वीसीआर साइकिल को प्रेशर एंथैल्पी या टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. और वो कैसे करते उसको हम यहाँ पर देखेंगे. ये है पीएच चार्ट. नाउ दिस पीएच चार्ट, जैसे आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स में मोलियर चार्ट, इट इज जस्ट लाइक अ मोलियर चार्ट. लेकिन कैसा था, मोलियर चार्ट एक ही था, बट पीएच चार्ट डिपेंड करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हो, और अकॉर्डिंग टू रेफ्रिजरेंट वो पीएच चार्ट या रेफ्रिजरेशन टेबल चेंज होता है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपने सबसे पहले केयर लेना है कि उस न्यूमेरिकल में कौन सा रेफ्रिजरेंट हमको दिया हुआ है, और वो रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम उस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं पीएच चार्ट क्या होता है. यहाँ पे जो लाइन होती है, अगर आप पूरे लाइन को अगर एक साथ देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा. तो मैं एक एक लाइन का मीनिंग आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. यू कैन सी हियर. सबसे पहले जो लाइन आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है सैचुरेशन कर्व. ये जो कर्व है सैचुरेशन कर्व, दिस लाइन इज कॉल्ड सैचुरेशन कर्व. इसके वाई एक्सिस पे प्रेशर मार्क किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बार, और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी मार्क की जाती है इन टर्म्स ऑफ किलोजूल्स पर केजी. अब इस कर्व के एकदम टॉप पे एक जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करता है वेपर और लिक्विड को. एक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो कर्व है, ये जो कर्व आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, इस कर्व को बोला जाता है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व. ये कर्व होती है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, लिक्विड कर्व. और इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में जो लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन. तो लेफ्ट साइड में क्रिटिकल पॉइंट के सैचुरेटेड लिक्विड, और राइट साइड में बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन. सेकंड, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड सबकूल्ड रीजन. सबकूल्ड रीजन, तो यहाँ पे जो भी हीट इन्वॉल्व होंगी दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट. ये जो पोर्शन इन्वॉल्व है, इस पोर्शन को बोलते हैं सुपरहीटेड रीजन, और यहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व होंगी दैट इज कॉल्ड सुपरहीटेड हीट. और बीच का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है कोर के अंदर का, यहाँ पे जो फेज रहेगा उसको बोलते हैं मिक्सर फेज और वेट रीजन, जहाँ पे आधा रहेगा लिक्विड और आधा रहेगा वेपर. तो ये होगा मिक्सचर रीजन, वेट रीजन इज कॉल्ड वेट, जिसका टू फेज रीजन लिखा है यहाँ पे, जैसे मिक्सचर रीजन. अब देखो हीट कौन सी, यहाँ पे 3 हीट इन्वॉल्व रहेंगी. एक है सेंसिबल हीट, दूसरी लैटेंट हीट, और तीसरी सुपरहीटेड हीट. अब यहां से यहां तक, मतलब अप टू सैचुरेशन लिक्विड लाइन, सैचुरेशन लिक्विड लाइन की तरफ जितनी हीट जाएगी, मतलब यहां से लेके ये पॉइंट तक, या फिर यहां से लेके ये पॉइंट तक जो भी हीट रिस्पॉन्सिबल हीट फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब एक और तक, ये कॉर्ड से लेके ये कॉर्ड से लेके ये कॉर्ड तक जो भी हीट रिस्पॉन्सिबल हीट बोला जाएगा. इस सैचुरेशन
ऊपर मैं यहाँ तो कॉन्स्टेंट कैसे हॉरिजॉन्टल लाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रेशर मार्क किया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट लाइन, जो ब्लू कलर की लाइन निकाल रहा हूँ, ये लाइन बोला जाता है कांस्टेंट लाइन। देखो होती है और के अंदर वो हॉरिजॉन्टल होती है और फिर से और वो वर्टिकल बन जाती है। तो दूसरी लाइन ये लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रकार की यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कांस्टेंट एंड लाइन, जो दिख रही है आपको लाइन, लाइन ये जो इंक्लाइन लाइन है, दिस लाइन इज कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। नंबर ऑफ लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और इस प्रकार से इस लाइन को हम यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छी तरह से ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिस इज कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। देन ये जो ब्लैक कलर की लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, देखो आप ये कांस्टेंट टेम्परेचर राइट, और इस लाइन की ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू दिख रही है। देन एक इसी को फॉलो, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी को फॉलो ये लाइन नेटवर्क कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का थोड़ा इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। देन दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ब्लू का जो लाइन है दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, और ये जो रेड कलर इट इज कॉल्ड सैचुरेशन वेपर लाइन, एंड दिस इज अ सबकूल्ड रीजन, दिस इज कॉल्ड रीजन लिक्विड और सबकूल्ड रीजन। रिपीट करते हैं VCR साइकिल को, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द VCR साइकिल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इंक्लाइन होती है, कांस्टेंट एंथैल्पी पे होती है, तो प्रोसेस है हीट एब्सॉर्प्शन इन द इवापोरेटर, जो कि अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। अब मैं वो पीएच चार्ट को यहाँ पे निकालता हूँ, तो कैसे निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। Sir, screen is not visible and your voice was break since you Screen is start not to visible, graph okay, sorry. description. Okay, सर आपकी Okay, आवाज okay. भी I'm अटक again रही है sharing सर, the जब screen. से आपने ग्राफ बताना चालू किया। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, आवाज आ जाएंगी, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। सर आपका वीडियो कॉल क्लोज कीजिए सर, उसके कारण आपका ऑडियो ब्रेक हो जाता है। चलो ठीक है, थैंक्स। मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ फिर से। नाउ आदित्य स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। Okay. Now I will show you here. ये मैंने जब आपको पीएच चार्ट बताया था, पीएच चार्ट समझ में आ गया आदित्य? नो सर, नो सर। यस सर, वो दिखाई नहीं ना सर, Yes, sir. वहां पे वो आवाज भी नहीं आ हाँ, रही तो थी, ऑडियो क्लियर नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं पीएच चार्ट फिर से आपको बताता हूँ। ये जो पीएच चार्ट है ना, पीएच चार्ट में जो लाइंस है, लाइन का मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ये सीपी स्टैंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट, राइट। देन इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो लाइन दिख रही है, जो भी मैं ड्रा कर रहा हूँ, दिस लाइन इज कॉल्ड सैचुरेशन लाइन, एसएल यहाँ पे लिखा हुआ है, एसएल फॉर सैचुरेशन लाइन, राइट। और इस सीपी के राइट साइड में जो सीपी के जो राइट साइड में लाइन दिख रही है, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर लाइन, राइट। ये जो पोर्शन है सैचुरेशन लिक्विड लाइट के लेफ्ट में जो पोर्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सबकूल्ड रीजन और लिक्विड रीजन,
और सैचुरेशन वेपर लाइन पे राइट साइड में जो पोर्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड सुपरहीटेड रीजन, यहाँ पे दिखा हुआ सुपरहीटेड रीजन। और ये जो सैचुरेशन कर्व के अंदर का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड टू फेज मिक्सचर रीजन या फिर वेट रीजन, वेट रीजन। अब देखो लेफ्ट साइड में जो हीट इन्वॉल्व होती है सैचुरेशन लिक्विड लाइन के लेफ्ट साइड में जो हीट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट, दिस हीट इज अ सेंसिबल हीट, राइट। इनसाइड दी कॉर के इनसाइड में जो हीट होती है दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, और इस सैचुरेशन वेपर लाइन के आउटसाइड में जो हीट होती है दैट इज कॉल्ड सुपरहीटेड हीट, राइट। अब इस कॉर को हम बोलेंगे, इसके ऊपर जो लाइन से लाइन का मीनिंग हम देखेंगे। सबसे पहले जस्ट अ मिनट, आप यहां पे देखो, हाँ पहली लाइन आती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ये होंगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। फिर आती है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉलो करो इसको, दिस लाइन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और इस लाइन के नीचे यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू लिखी रहती है, ये पहली टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये दूसरी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन निकाल सकते हो। थर्ड लाइन यहाँ पर है कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, ये जो लाइन दिख रही है सैचुरेशन वेपर से जो लाइन निकलती है इंक्लाइन लाइन, दिस लाइन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, दिस इज द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। ये तीन लाइन आपको याद रखनी है। अब इस तीन लाइन को मैं फिर से आपको एक्चुअल डायग्राम में दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, तो यू विल सी हियर ये तीन लाइन कौन कौन सी है। पहले जो ब्लैक कलर की जो दिख रही है आपको, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, लिखा है इसके ऊपर। देन ये जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस लाइन इज द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, देखिए हुई यहाँ पे। उसी को थोड़ा इंक्लिनेशन कम है वो जो लाइन दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। अभी आपको सिर्फ, और ये जो रेड कलर की लाइन है दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये पूरी। अब आपको इतना ही याद रखना है, बाकी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर एज द गेट क्वेश्चंस आर कंसर्न। अभी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो चार प्रोसेसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, देन थ्रॉटलिंग इन एक्सपांशन वॉल एंड अगेन हीट एब्सॉर्प्शन इन इवापोरेटर, ये चार प्रोसेसेस यहाँ पर है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, पीएच चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, प्रेशर लाइन निकालूंगा, वाई एक्सिस हमेशा प्रेशर लाइन होती है, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस विच इज द एंथैल्पी। यहाँ पे एंथैल्पी आ गई, यहाँ पे प्रेशर आ गया। तो मैं स्टार्टिंग में क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा पहले सैचुरेशन कॉर, ये देखो सैचुरेशन कॉर मैंने निकाल दी यहाँ पे। देन आई विल मार्क द टू प्रेशर लिमिट, टू प्रेशर लिमिट कौन सी है, प्रेशर इन द इवापोरेटर एंड प्रेशर इन द कंडेंसर। ये सबसे जो नीचे की लाइन होती है दैट विल बी द प्रेशर इन द इवापोरेटर, इमेजिन करो ये है पीई। and then I will mark another line, so this will be the pressure, this is a constant line, a constant temperature line, ये होगी आपकी pressure in the condenser, right। अब हम imagine we are here at the inlet to the evaporator, this is suppose this is your first point, ये लिखा है पे first point, ये first point है। यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट है, दिस कंडीशन इज, इमेजिन करो इट इज अ ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर मतलब वो रहेगा पॉइंट यहाँ पर। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, राइट, लो प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर इज अ ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब उसको हम पास कर रहे कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर में जब पास करेंगे तो वी आर ड्राइंग द आइडियल साइकिल, और आइडियल साइकिल के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेसर रहने को ना। अगर कंप्रेसर का वर्क कम रहा तो हमारी एफिशिएंसी, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो मिनिमम कंप्रेसर वर्क कब मिलता है, व्हेन द कंप्रेशन प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो, ऊपर ये जो लाइन है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लाइन, इस लाइन को फॉलो करके कंप्रेशन लेना पड़ेगा। तो सी, ये अभी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। ये कंप्रेशन कहां तक होगा, अप टू कंडेंसर प्रेशर, अप टू कंडेंसर प्रेशर जाएगा। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी पॉइंट नंबर 2, ये मिल गया पॉइंट नंबर 2। ये आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन से देखो इसका प्रेशर बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते पॉइंट नंबर 2 मिल गया अभी हमको। नाउ वी आर पासिंग दिस रेफ्रिजरेंट थ्रू द कंडेंसर। अब कंडेंसर में क्या हो रहा है, देयर इज अ हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, reaction in the condenser taking place at constant temperature। तो constant pressure पे उसको हम यहाँ पे हीट रिजेक्शन करेंगे। ड्यू टू हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो रहा है और उसका जो फेज है वो फेज कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। तो यहाँ पे आप देखोगे इनिशियल इट इज इन दी सुपर हीटेड फॉर्म। देखो पॉइंट नंबर में कैसा था फेज, इट वाज ड्राई सैचुरेटेड वेपर। जब
और इसको ड्राई सैचुरेटेड वेपर को कंडेंसर में कूल कर रहे हैं। सर हेलो सर, ऑडियो सर आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आ रही क्या? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। भाई और नेटवर्क की इशू आ रही होंगी आज, पता नहीं क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी वीडियो भी बंद कर दिया। आज क्या जाएगी तो हाँ, तो अभी अभी क्या रहा कि वी आर एट पॉइंट नंबर 2। आफ्टर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन यू विल गेट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 से जब वो कंडेंसर पास करेगा देयर विल बी अ हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, राइट। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ हीट ये जो सुपरहीटेड बनेंगे ड्राई सैचुरेटेड, एंड आप यहाँ पर आ गए। और फिर से एट कांस्टेंट टेम्परेचर धीरे धीरे लिक्विड वेपर का लिक्विड में कन्वर्शन होते रहेगा, और यहाँ पे ऑल दी वेपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट नंबर 3। एंड देन आफ्टर ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे मिल गया आपको। अब उसको हम पास करेंगे एक्सपांशन वॉल से, एक्सपांशन वॉल। सो एक्सपांशन वॉल में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी एक्सपांशन वॉल में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, दैट प्रेशर ड्रॉप इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे मतलब आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा पॉइंट नंबर 4। तो ये जो कर्व बनी अभी आपको, मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं, इन कलर ब्लू लेता हूं। अब ये जो यहाँ पे लाइन बन रही है, कर्व बन रही है 1 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, ये जो कर्व बन रही इट इज अ वीसीआर साइकिल। ये वीसीआर साइकिल है। इस प्रकार से वीसीआर साइकिल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पीएच चार्ट। और ये वीसीआर साइकिल मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से निकाल के दिखाई है। यू कैन सी जो ब्लर में दिख रहा है आपको 1 2 3 4, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल वीसीआर साइकिल ऑन पीएच चार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस इज द कंप्रेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस जो भी वर्क डन बाय द कंप्रेसर है वो कितना हो रहा है, इट इज इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। अगर आपको निकालना है तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट इट इज गिवन बाय H2 minus H1। वो कैसे निकालोगे आप, यू विल फाइंड द एंथैल्पी, यू विल फाइंड द एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे कैसे मिलेंगे एंथैल्पी आपको ये ग्राफ पे जाना पड़ेगा चार्ट, यहां से आपको एंथैल्पी मिलेंगी H2। सिमिलरली यू विल फाइंड द एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 1, चार्ट से आपको यहाँ पे एंथैल्पी मिलेगी, और दोनों का जो रेशियो रहेगा H2 minus H1 दैट विल गिव यू वर्क ऑफ कंप्रेसर। नेक्स्ट कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसेशन प्रोसेस में, एंड दैट हीट रिजेक्शन इज अगेन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी डिफरेंस H2 minus H3। सो हियर यहाँ पे ये 2 पॉइंट में एक एंथैल्पी, यहाँ की एंथैल्पी हम लेंगे, पॉइंट नंबर 3 की एंथैल्पी लेंगे, दोनों का डिफरेंस हमको देगा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द कंडेंसर कूलिंग एयर। Expansion process, expansion process drop in pressure but at constant enthalpy, constant enthalpy पे वहां पे ड्रॉप हो रहा है which is given by the process बोलते हैं इसको, वो 4-1 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द प्रोसेस 4-1 जैसे रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर के थ्रू फ्लो करेगा, दिस विल एब्सॉर्ब हीट एंड अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब विल बी अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट व्हिच इज गिवन बाय द इक्वेशन H1 minus H4। So this refrigerating effect is the amount of heat absorbed in the evaporator. We will find fission performance. Performance given by the ratio of what? Ratio of is a ratio of refrigerating effect upon compressor. It is a ratio of refrigerating effect upon work done by the compressor. तो हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे, you will get COP equals to H1 minus H4. What is H1 minus H4? H1 minus H4 it is the वर्क ऑफ कंप्रेसर। ये जो ना यहाँ पे सॉरी H1 minus H4 यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज अ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, वो आएगा ऊपर और वर्क, ये जो सर वर्क
का जो रेशियो है ना, दैट इज कॉल्ड, इस तरह से हम सीओपी फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने इसको मैं डिलीट करता, हो गया हमारा ये रेफ्रिजरेंट। सिर्फ इसमें दो बातें बताऊंगा। व्हाट इज रेफ्रिजरेंट? इट इज अ वर्किंग मीडियम विच इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस right at a low temperature, and then this low temperature is rejected into the high temperature in the condenser. ये है refrigerant, यहाँ पे definition दी हुई है। It is a heat carrying medium which absorb the heat during evaporation at low temperature and reject or release the heat during condensation at high temperature. आइडियल रेफ्रिजरेंट जो होता है, आइडियल रेफ्रिजरेंट किसको बोलते हैं? आइडियल रेफ्रिजरेंट के अंदर अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको आइडियल बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट आइडियल नहीं होता। उसकी अगर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी अच्छी है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत बेकार रहती है। अगर फिजिकल अच्छी है तो उसकी केमिकल बेकार रहती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज करके हमें जो ऐसा रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करना है जिसकी सभी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑप्टिमाइज है। हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, हम रेफ्रिजरेंट को आइडियल रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं अगर उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ये इस प्रकार से है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट शुड बी वेरी लो, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा रेफ्रिजरेंट का तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम रहेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम कम रहेगा तो हमें कंप्रेसर का साइज कम लेना पड़ेगा। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रेसिंग द एयर, कंप्रेसिंग द रेफ्रिजरेंट टू वेरी हाई टेम्परेचर। ये ज्यादा आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन लो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम रहने को ना, अगर फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फ्रीज हो जाएगा वहां पे। देयरफॉर लो फ्रीजिंग पॉइंट रहने को ना रेफ्रिजरेंट का। थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी वेरी हाई, जितनी ज्यादा रहेंगी उतना फास्ट वहां पे हीट ट्रांसफर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हाई लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होंगी उतना कम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, मतलब उतना ज्यादा हीट वहां पर एब्सॉर्ब होंगी इवापोरेटर में एट हाई लैटेंट हीट। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम शुड बी लेस, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब कंप्रेसर का साइज बहुत छोटा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल, राइट, इट शुड नॉट कैच फायर, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, उसकी बास नहीं आने को ना। देन इट शुड नॉट बी करोजिव, उसने मटेरियल पे करोजन नहीं लाने को ना। एंड इट शुड बी ऑर्डरलेस, उसका टेस्ट जो रहेगा वो उसका जो स्मेल रहेगा दैट शुड बी ऑर्डरलेस। ये होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारी आइडियल प्रॉपर्टीज है रेफ्रिजरेंट की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है द विस्कोसिटी शुड बी लो, अगर विस्कोसिटी लो रहेगा तो फ्लो अच्छा होगा, फ्लो में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो वहां पे लॉस नहीं होगा। Then it should be immiscible with the oil. Even if this refrigerant comes in contact with the oil, there should not be mixing of the oil, right? तो it should be immiscible। और लीकेज क्या होता है, रेफ्रिजरेंट बहुत महंगा होता है और रेफ्रिजरेंट अगर लीक हो रहा है, इट इज लाइटेस्ट गैस, लाइट होने का ऑटोमेटिकली वो ऊपर एटमॉस्फेयर में लीक हो सकता है। अगर हमारे ध्यान में नहीं आया तो पता चला पूरा कंप्रेसर खाली हो गया और हमें पता ही नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं ना, इट शुड बी लीक डिटेक्टेबल, मतलब वो लीक हो रहा है हमको समझ में आने को होना। ये आने के लिए एक तो उसकी स्मेल रहती है या फिर उसका लाइट रहता है, इस प्रकार की चीजें उसमें रहने को ना। सो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्लासिफिकेशन रेफ्रिजरेंट का छोड़ देता हूं मैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखना आपने कि जो रेफ्रिजरेंट अभी यूज होता है ना, दैट रेफ्रिजरेंट इज द ओजोन फ्री रेफ्रिजरेंट। वो रेफ्रिजरेंट है R134 टेट्राफ्लोरोइथेन। R134 रेफ्रिजरेंट यूज होता है इन एयर कंडीशनर और इन रेफ्रिजरेटर। पहले क्या होता था, 10 साल पहले जो रेफ्रिजरेंट यूज होता था वो था हेलोकार्बन ग्रुप का R12 R22, क्योंकि इस रेफ्रिजरेंट की आइडियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती थी, इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती थी, इसलिए इसको यूज किया जाता था। लेकिन कुछ दिनों में के बाद ऐसा पता चला कि इस रेफ्रिजरेंट के कारण ओजोन लेयर का डिप्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें इस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन होता है and chlorine is responsible for breaking the ozone layer. Therefore, there is a ban in the use of halocarbon refrigerant like R12, R22. अभी ये रेफ्रिजरेंट यूज नहीं होते। क्यों यूज नहीं होते? क्योंकि these refrigerant are found to be responsible for depletion of the ozone layer. Therefore, these refrigerant are obsolete. It is not used. It is replaced by R134 refrigerant. R134 refrigerant are the eco-friendly refrigerant. इस रेफ्रिजरेंट से ओजोन लेयर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए राइट नाउ ओनली R134 रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर और इन एयर कंडीशनर। इतना याद रखना आपने।
नाउ अभी जितना हम पढ़े, इट वाज अ रेफ्रिजरेशन। सब्जेक्ट का नाम क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। लेकिन जो चीज अभी तक हम पढ़े, इट वाज अ रेफ्रिजरेशन। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आर टोटली डिफरेंट। क्या डिफरेंट है वो मैं बताता आपको अभी यहाँ पे। व्हाट इज एयर कंडीशनिंग? एयर कंडीशनिंग जैसे नाम में दिया हुआ है, कंडीशनिंग ऑफ द एयर। व्हाई कंडीशनिंग ऑफ द एयर? To maintain the comfort condition for the human being, right? So definition of air conditioning, it is the study of conditioning of the air. Conditioning of the air मतलब हमें इस प्रकार से एयर का सप्लाई करना और वो मेंटेन करना। कैसे करना? दैट इज सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग द डिजायरेबल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब देखो इसमें क्या होता है कि बाहर की कंडीशन कैसे भी रहे, बट इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेंटेन करना फॉर द कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके लिए हम क्या करते? एयर को कंडीशन करते। क्यों कंडीशन करते? टू मेंटेन इस टेम्परेचर, टू मेंटेन इस मॉइस्चर कंटेंट एंड टू मेंटेन इस प्यूरिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन को। इट इज द कंडीशनिंग ऑफ द एयर दैट इज सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग द desirable condition in the internal atmosphere as regard to its temperature, moisture content and purity irrespective of external condition। बाहर की कंडीशन कैसे भी रहे, अंदर की कंडीशन दैट इज टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट एंड प्यूरिटी ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, मतलब एयर कंडीशनिंग करना। ये काम कौन करता है? ये काम करता है एयर कंडीशनर। दिस वर्क इज डन बाय द एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनिंग किसको डील करती है? इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, इट्स अ बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशन एंड द मेथड टू कंट्रोल दिस वेरियस कंडीशन। अगर आपको प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो उसको एक कंडीशन के थ्रू उसको पास करना पड़ता है एयर को। आई मीन टू से एयर कंडीशनिंग डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर। अब देखते हैं हम एयर, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। एयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर, राइट? अब ड्राई एयर जो होती है उसमें क्या होता है? ड्राई एयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, देयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड सम और अदर गैसेस दैट इज 1%। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर में क्या क्या रहता है? अब आते हैं हम मॉइस्ट एयर में। जो ड्राई एयर में होता है वही मॉइस्ट एयर में भी होता है। तो आप देखोगे सेम मॉइस्ट एयर में आपको दिख रहा है। तो लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? ड्राई एयर को मॉइस्ट एयर को डिफरेंशिएट कैसे किया गया? इसमें मॉइस्ट एयर में एक एडिशनल एक कंस्टिट्यूएंट्स होता है दैट इज अ वाटर, दैट इज अ वाटर वेपर। इसमें वाटर वेपर होता है एंड वाटर वेपर के कारण ड्राई एयर बन जाती है मॉइस्ट एयर। एंड इन एयर कंडीशनिंग द मॉइस्ट वाटर वेपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितना टेम्परेचर को नहीं है। एक बार का टेम्परेचर, एयर कंडीशनर जनरली 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है। एक बार का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं हुआ तो आप उस एटमॉस्फेयर में रह ही नहीं सकते। एग्जांपल के तौर पर अगर आप बॉम्बे गए तो बॉम्बे में सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर तो बॉम्बे में है नागपुर से। नागपुर में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो बॉम्बे में वो 35 रहता है। उसके बावजूद भी वी आर मोर कंफर्टेबल इन नागपुर देन मुंबई। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन मुंबई देयर इज अ इवापोरेशन इज वेरी फास्ट, क्योंकि वहां पे अरबी तालाब है वहां पे, जिसके कारण वहां पे मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण वहां पे में चिपचिपाहट बहुत रहती है, वहां पे बहुत ही स्वेटिंग आती है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ लेस टेम्परेचर। सो एयर कंडीशनिंग में क्या होता है? टेम्परेचर इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर वेपर एंड दिस वाटर वेपर इज मेंटेन बाय एयर कंडीशनर। कितना वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट होती है उतने अकॉर्डिंगली वो मेंटेन होता है बाय एयर कंडीशनर अलोंग विथ टेम्परेचर। So dry air with a water vapor, it is called moist air। अभी हम कुछ साइकोमेट्री के बारे में देखते हैं। साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर। अब याद रखना, एयर कंडीशनिंग हैज टू डू नथिंग विद द एयर। ड्राई एयर से उसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज विथ मॉइस्ट एयर ओनली। एयर कंडीशनिंग मतलब मॉइस्ट एयर, राइट? वर्ड याद रखना, मॉइस्ट एयर, जिसमें वाटर वेपर होते हैं। So, what is psychometry? It is a branch of science which deals with the properties of the dry air mixed with water vapor, that is a moist air। इन साइकोमेट्रिक चार्ट। अब चार्ट क्या बोलेंगे? चार्ट बोले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे पीएच चार्ट है, मोलियर चार्ट है, उसी प्रकार से साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। एंड दिस साइकोमेट्रिक चार्ट गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर। यहां से हम मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को फाइंड कर सकते हैं। सो इट गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर एंड दिस चार्ट इज लाइक। इस प्रकार से चार्ट होता है। इस चार्ट को हम डिटेल में आगे देखते हैं।
इन साइकोमेट्रिक टर्म्स, अलग अलग प्रकार की साइकोमेट्रिक टर्म्स होती है। फर्स्ट ड्राई एयर, ड्राई एयर किसको बोलेंगे? जो बताया था मैंने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बट विदाउट moisture. Without moisture it is a dry air. Atmospheric air without presence of water, it is called dry air. Then moisture किसको बोलते हैं? amount of water vapor present in the air, it is called moisture. And ये जो moisture air में होते हैं, it vary from 0 to maximum. अगर 0 है तो उस एयर को हम बोलेंगे dry air, अगर maximum है तो उस एयर को हम बोलेंगे saturated air. If the air is holding the moisture, maximum moisture एज पर इस कैपेसिटी, जितनी एयर की उस टेम्परेचर पे मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, उतने मॉइस्चर अगर उस एयर में है तो उस एयर को बोला जाता है सैचुरेटेड एयर। तो ये मॉइस्चर तो बता दिया मैंने, सैचुरेटेड भी आपको एयर बता दिया मैंने। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ऐसा कोई बहुत से लोग बोलते रहते हैं, तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ ड्राई एयर, इन गिवन 1 kg of dry air, it is called humidity or specific humidity. So mass of water vapor present in kg of dry air, it is called humidity. अगर 1 kg of dry air मैं लेता हूँ तो 1 kg dry air में जितने भी water vapors present होंगे in grams, that is called humidity or a specific humidity. Another one is absolute humidity. It is similar to the humidity. इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पर है? सैंपल में। ऊपर मैंने 1 kg सैंपल लिया, यहाँ पे आपको 1 मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सो इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब सैंपल ऑफ ड्राई एयर, right? So therefore it is expressed in gram per meter cube of dry air, whereas humidity is expressed in terms of gram per kg of dry air. मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि इसमें क्या आता है कि एक सैंपल को हमने लिया, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब तो आपको समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। अब रिलेटिव से क्या हो गया? रिलेटिव से इसको हम रिलेट कर रहे हैं किसके तो भी साथ, तो हम रिलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ। अब स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है सैचुरेटेड एयर। तो ह्यूमिडिटी विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमिडिटी ऑफ द सैचुरेटेड एयर, इट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज nothing but the humidity of the given air with respect to the relative humidity of the saturated air. It is called relative humidity, and it is defined as the ratio of actual mass of water vapor in a given volume of air to the mass of water vapor in the same volume of saturated air. मतलब एक सैंपल ऑफ एयर मैंने ली, 1 kg सैंपल ऑफ एयर मैंने लिया, उस सैंपल में जितने मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो आएंगे न्यूमरेटर में, एंड अगर वो एयर सैचुरेटेड एयर होती तो उस सैचुरेटेड में फिर वो आएंगी नीचे, और दोनों का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो हमको देगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सैचुरेटेड एयर कितनी रहेंगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर विल बी 100%, क्योंकि ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म सेम रहेंगी। मैंने कहा था नीचे आता कंडीशन एट सैचुरेशन, वो नीचे ऊपर भी आपने सैचुरेशन कंडीशन ले लिए, तो दोनों का रेशियो रहेगा 1 मतलब 100%, एंड दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलवेज मेंटेन, ऑलवेज गिवन इन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। सो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब द एयर विल बी सैचुरेटेड एयर। देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में इसको दिया जाता है डीबीटी। अभी क्या होता है कि टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ये जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर जो भी टेम्परेचर है, थर्मोमीटर को पकड़ा अपने एयर में, अब वो जो एयर का टेम्परेचर है थर्मोमीटर रीड करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इट इज गिवन बाय डीबीटी एंड एक्सप्रेस एट टीडीबी शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर। अभी हमने क्या किया, ये जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी बल्ब है उसको व्रैप किया गीले कपड़े से, वहां पे एक हमने वेट क्लॉथ लगा दिया, और लगाने के बाद ना वो टेम्परेचर जो मेजर होगा वो टेम्परेचर रहेगा वेट बल्ब टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या कर रहे हैं हम? वेट बल्ब टेम्परेचर में एयर फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेट क्लॉथ, और आने के बाद वहां पे होगा इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? कूलिंग। इवोपरेशन मतलब कूलिंग। अब जो एयर उस क्लॉथ के कांटेक्ट में आ रही है, वो एयर कितनी ड्राई है अकॉर्डिंगली वहां पे इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन मतलब कूलिंग होगा। अब इवोपरेशन से कूलिंग कैसे होता है? जैसे पता होगा आप बहुत काम कर रहे हो, काम करते करते स्वेटिंग होता है आपका। अब वो जब स्वेटिंग हो गया, आपका बॉडी गीली होगी, एंड व्हेन द ब्लो ऑफ एयर क्रॉसेस यू, आपके ऊपर से एयर जाती है, तो यू फील वेरी कोल्ड,
Why? Because that is the evaporation, and during this evaporation वो आपके बॉडी के अंदर की हीट को उस एयर ने एब्सॉर्ब किया. एब्सॉर्ब करने के बाद जैसे बॉडी ने हीट को रिजेक्ट किया, बॉडी कूल फील कर रही है, राइट. ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन. और ये इवापोरेशन कितना होगा ये डिपेंड करता है जो भी एयर इस वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में आ रही है वो कितनी ड्राई है. इफ दैट एयर इज वेरी ड्राई देन देयर विल बी वेरी वेरी हाई इवापोरेशन. एंड हाई इवापोरेशन मतलब वहां पे कूलिंग बहुत ज्यादा होगा. कूलिंग बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम मेजर होगा थर्मोमीटर से. तो लेस वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब वेरी ड्राई एयर, राइट. इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर वेट बल्ब टेम्परेचर कम मेजर कर रहा है इसका मतलब जो भी एयर उस बल्ब के कांटेक्ट में आ रही है वो बहुत ड्राई है, मतलब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है. अगर वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिखा रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो रहा है? जो एयर उसके कांटेक्ट में आ रही है वो ज्यादा ड्राई नहीं, वो वेट एयर है. वेट एयर है मतलब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, राइट. और अब मैं कंडीशन बताता हूं. अगर वेट बल्ब टेम्परेचर, अब इसलिए तो समझ में आ गया कि वेट बल्ब टेम्परेचर विल ऑलवेज बी लेस देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. लेकिन ऐसी कंडीशन आ सकती है जिस कंडीशन में वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएंगे. अब दोनों सेम हो गए इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स जो एयर इस वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में आ रही है दैट एयर इज द सैचुरेटेड एयर. सैचुरेटेड एयर रहने के कारण देयर इज नो स्कोप ऑफ इवापोरेशन, और इवापोरेशन का स्कोप नहीं होने के कारण वहां पे किसी प्रकार का कूलिंग नहीं होगा. कूलिंग नहीं होगा इसका मतलब जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वही टेम्परेचर वेट बल्ब रिकॉर्ड करेगा. ये इसका मीनिंग होता है. तो वेट बल्ब टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि जो भी एयर कांटेक्ट में आ रही है वो कितनी ड्राई है या कितनी वेट है, ये वो टेम्परेचर से पता चलता है. तो ये हो गया, इसको मैं स्किप करता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर्स इन द एयर स्टार्ट टू कंडेंस. मैंने कहा था कि जब एयर होती है एयर में अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर कितना है ये डिपेंड करता है किस टेम्परेचर के ऊपर वो एयर है. जब उस एयर को आप कूल करोगे तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा. टेम्परेचर ड्रॉप होते होते जाएगा, ड्यू पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच गया. अब उसके नीचे अगर ड्रॉप करोगे तो जो भी वाटर वेपर्स अवेलेबल रहते हैं ना उस मॉइस्चर में, वो उस एयर से बाहर आ जाते, मतलब कंडेंस हो जाते, और उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे मॉइस्चर, एयर के अंदर के मॉइस्चर उस एयर से बाहर आ जाते, वाटर में कन्वर्ट होते हैं, ड्यूज में कन्वर्ट होते, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा. इमेजिन करो आपने एक ग्लास लिया, वो ग्लास स्टील का ग्लास है, उसमें कुछ आइस के क्यूब्स डाल दिया आपने, और वो आइस क्यूब वाला ग्लास एक टेबल पे छोड़ दो, राइट. जब आपने ग्लास लिया था पूरा ड्राई था बाहर से, लेकिन कुछ देर के बाद अगर आप देखोगे तो जो ग्लास है ना, ग्लास का सरफेस पूरा गीला हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो ग्लास आपने टेबल पे रखा था एंड व्हेन आउटसाइड एयर कम्स इन कांटेक्ट विद दैट ग्लास, व्हाट हैपन? द टेम्परेचर ऑफ दैट आउटसाइड एयर ड्रॉप्स. वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ग्लास का टेम्परेचर आइस के कम टेम्परेचर सॉरी आइस के कारण कम होने के कारण व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्लास, वो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होते गया. धीरे धीरे जैसे ही वो टेम्परेचर उस एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे चला गया, और क्या हुआ? उस एयर में जो एक्सेस मॉइस्चर थे वो एक्सेस मॉइस्चर बाहर आ गए. क्योंकि क्या होता, मैंने कहा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे एयर मैक्सिमम एयर होल्ड करते हैं और कम टेम्परेचर पे कम एयर होल्ड करते हैं. तो जो एक्सेस एयर थे वो एक्सेस एयर बाहर निकल जाते एंड दे गेट अकोमोडेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और इसलिए आपको ग्लास का सरफेस गीला दिखता है. एंथैल्पी सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट बता दी मैंने आपको. नाउ इंपॉर्टेंट साइकोमेट्रिक चार्ट. ये साइकोमेट्रिक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं. सॉरी. Now see, this is a psychometric chart. Actually, this is not a psychometric chart. This is the shape of psychometric chart. You can see here. This is soul, this is a heel, and this is an instep. ये तीनों पार्ट साइकोमेट्रिक चार्ट में रहते हैं, वो इस प्रकार से रहते हैं. तो एक्स एक्सिस मतलब सोल, वाई एक्सिस मतलब हील, एंड स्कीप जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज द इंस्टीप, वो है कर्व. अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. अब आप देखो यहाँ पे पूरे चार्ट को अगर एट ग्लांस देखोगे तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. कौन सी लाइन क्या है पता नहीं चलता. तो विल सी दिस चार्ट सेपरेटली विथ ओनली वन लाइन, और फिर सारे लाइन को हम कंबाइन करेंगे. तो सबसे पहले
इस चार्ट से जो क्या पता चलता है हमको, साइकोमेट्रिक चार्ट से हमें प्रॉपर्टीज पता चलती है मॉइस्ट एयर की। वो प्रॉपर्टी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम इस चार्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चार्ट जो बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रहती है ड्राई बल्ब के लिए। तो इस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन जो लिखा है यहाँ पे 40, 30, 50, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है यहाँ पे ड्राई बल्ब, राइट। देन वर्टिकल लाइन जो शो कर रही है वो शो कर रही है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, दैट इज वाटर वेपर, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वाई एक्सिस पे क्या है, मॉइस्चर की क्वांटिटी और ह्यूमिडिटी यहाँ पे स्पेसिफाई होती है। और ये जो कर्व लाइन है ये होती है सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व मतलब इसी लाइन को फॉलो करते करते रिलेटिव ह्यूमिडिटी नीचे आती रहती है। मतलब इस सैचुरेशन कर्व के ऊपर अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखोगे तो यहाँ पे आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी 100%। तो सैचुरेशन कर्व, यहाँ पे आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी मिलता है। तो पहले हम लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसे निकालोगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे जो टेम्परेचर मार्क किए 40, 50, 60, यहाँ से जो वर्टिकल लाइन निकलेंगे, दिस वर्टिकल लाइन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। सो ऑल दिस वर्टिकल लाइन विच इज देयर ऑन दी, यहाँ पे देखो दोनों जगह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए, यहाँ पे एक्चुअल साइकोमेट्रिक चार्ट है और इसका सिर्फ वर्टिकल लाइन लेके साइकोमेट्रिक चार्ट यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, दीज आर द कांस्टेंट टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, दे आर यूनिफॉर्मली स्पेस। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल चार्ट पे वो शो किया एंड एक्चुअल शॉक चार्ट के ऊपर ये ड्राई बल्ब लाइन कैसे रहती है, ये रेड कलर की एक लाइन मैंने यहाँ पे शो की, इस लाइन को बोला जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट लाइन इज वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। इसमें जो इंक्लाइन लाइन दिख रही है आपको येलो कलर की चार्ट के ऊपर, दिस इंक्लाइन लाइन इट इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। और वेट बल्ब टेम्परेचर हम काउंट कहां पर करेंगे, वी विल काउंट दिस वेट बल्ब टेम्परेचर ऑन दी सैचुरेशन कर्व। आपने देखा था, मैंने बोला था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहां से मिलता है हमको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमको इस एक्स एक्सिस से मिलेगा। बट वेट बल्ब टेम्परेचर कहां से मिलेगा, वी विल गेट द वेट बल्ब टेम्परेचर फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। यहाँ पे वो वेट बल्ब टेम्परेचर एक्चुअली वही रहता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा, लेकिन हमको यहाँ से काउंट करना है। एंड द लाइन इज इंक्लाइन लाइन। तो यहाँ पे जितनी भी इंक्लाइन लाइन आपको दिख रही है, जो इंक्लाइन लाइन दिख रही है, दिस इंक्लाइन लाइन इट इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये आगे के स्लाइड में आपको दिखेंगे। हियर दीज आर द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। और एक्चुअल पीएच चार्ट में दिस वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन इज शोन बाय दिस। तो यहाँ पे देखो वेट बल्ब टेम्परेचर आपको दिख रहा है, इट इज, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। जस्ट अ मिनट, आई शो यू। सपोज यहाँ पे मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये अगर पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा उसके लिए मुझे सैचुरेशन कर्व तक जाना पड़ेगा। और सैचुरेशन कर्व पे मिलेगा मुझे फिर वेट बल्ब टेम्परेचर कितना, 65। और इस पॉइंट के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए नीचे आना पड़ेगा और वो टेम्परेचर है 85। तो same air at condition A is having dry bulb temperature 85 whereas wet bulb temperature 65. Then relative humidity लाइन कर्व लाइन को फॉलो करती है, जो कर्व दिखाई थी मैंने आपको चार्ट के ऊपर उसको फॉलो करती है। तो सैचुरेशन कर्व जो होता है वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ये जो सैचुरेशन कर्व यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, और इसको फॉलो करने वाली जितनी भी बाकी लाइन है वहां पे अकॉर्डिंगली उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी धीरे धीरे फिर कम होती जाती रहती है, और वो आपको दिखेंगे इस चार्ट में सीआर। तो यहाँ पे 100% है, फिर ये जो दिख रही है 99%, ये 70%, ये 50% तो दिख रही है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज द ड्यू पॉइंट, या फिर से देख लो आप, दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि यहाँ पे ड्रॉ की गई है। इन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, this temperature is shown by the constant horizontal line, right? And this temperature again mark at the saturation curve, but shown by the constant temperature line, horizontal line। यहाँ पे शो करता हूँ मैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स आर शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन है, और टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको, यू विल गेट टेम्परेचर ऑन द सैचुरेशन कर्व। तो देखो मैं, ये जो चार्ट है ये ड्यू पॉइंट लाइन टेम्परेचर, और यहाँ पे अभी हम निकालते, फिर से निकालते 3 टेम्परेचर। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, सपोज आई टेक दिस पॉइंट, ओके आई टेक दिस पॉइंट, ये पॉइंट लेता मैं। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं सबसे पहले निकालता हूँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इट इज हाउ मच, इट इज 82, राइट। वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है तो मुझे इंक्लाइन जाना पड़ेगा अप टू सैचुरेशन कर्व, यहाँ पे मिलेगा मुझे 65, यहाँ पे मिलेगा। और ड्यू पॉइंट अगर निकालना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी पड़ेगी यहाँ से अप टू सैचुरेशन कर्व, ये सैचुरेशन कर्व, और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है दैट इज 55। ये 55 टेम्परेचर हो गया, ये हो गया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डीपी, ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर,
एंड ये हो गया ड्राइबल टेम्परेचर, ड्राइबल। इन दिस वे यू कैन रिकॉर्ड द टेम्परेचर। अगर यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए तो मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए टुवर्ड्स राइट जाऊंगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेंगे दैट विल गिव मी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए तो इस पॉइंट से जो भी ये कर्व पास हो रही है, ये कर्व मुझे देंगी सैचुरेशन, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी वैल्यू कर्व के ऊपर यहाँ पे लिख रहती है, दिख नहीं रही है, वो हमें देंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन दिस वे यू कैन यूज दी। देन ह्यूमिडिटी रेशियो बताया मैंने आपको, ह्यूमिडिटी रेशियो वाई एक्सिस पे रहता है ये। एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी लाइन और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन दोनों ओवरलैप होती है, बट फर्क कहां पर है? वेट बल्ब टेम्परेचर आपको सैचुरेशन कर्व के ऊपर मिलता है, यहाँ पे मिलता है सैचुरेशन कर्व के ऊपर, और ये जो लाइन दिख रही है एंथैल्पी लाइन, आपको उस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा ऊपर तक, अप टू एंथैल्पी लाइन तक। वहां पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको लेनी पड़ेगी एंथैल्पी की वैल्यू, राइट? तो दिस वे यू कैन फाइंड द एंथैल्पी आल्सो, एंथैल्पी लाइन, और ये एंथैल्पी लाइन यहाँ पे शो की है यहाँ पे इन्होंने, which is taken from the enthalpy scale. So यहाँ पे और एक लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम, लेकिन वो कंफ्यूजन होगा, वो आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, छोड़ दो उसको। और दिस इज एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो प्रकार की करीब 7-8 प्रकार की लाइन निकाली हुई है, और हर एक लाइन का मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर हम पहली लाइन लेते हैं तो दिस लाइन इज अ कर्व लाइन, और कर्व लाइन को बोलते हैं सैचुरेशन कर्व, यहाँ लिखा हुआ है। देन सेकंड नंबर की लाइन यहाँ पे ब्लू कलर की आ रही है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को दो नाम दिए गए, एक तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन और कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट टूवर्ड सैचुरेशन कर्व है तो उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे, तो इट इज अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। थर्ड लाइन कौन सी है? एंथैल्पी लाइन। देखो थर्ड नंबर की लाइन रेड कलर की लाइन है, दिस लाइन इज इंक्लाइन फॉलोइंग द वेट बल्ब टेम्परेचर, और उसको एक्सटेंड किया गया एंथैल्पी स्केल तक, तो उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी लाइन। देन फोर्थ नंबर की जो लाइन है इट इज अ कर्व लाइन, तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। देन फिफ्थ नंबर इज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, मतलब ह्यूमिडिटी रेशियो के ऊपर है, तो दैट विल बी कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन, मॉइस्चर कंटेंट लाइन। सिक्स नंबर की जो लाइन है वो है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, राइट? एंड लास्ट वन इज दी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हम नहीं लेंगे, छोड़ दो। एंड 8 नंबर है वर्टिकल लाइन, या वर्टिकल लाइन मींस इट विल बी अ कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। कैसे फाइंड करना मैंने बताया था, फिर से यहाँ पे हम देखते हाउ टू फाइंड दी वेरियस प्रॉपर्टीज टेम्परेचर। पॉइंट ए नंबर पे मैं ड्राई बल्ब निकालूंगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हाउ मच, इट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आई विल फाइंड द वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को फॉलो करेगा और अप टू सैचुरेशन कर्व, यहाँ पे टेम्परेचर मुझे मिलेगा नियर अबाउट 67 डिग्री सेंटीग्रेड। देन ड्यू पॉइंट